Okay, so am I audible? यस सर। Okay, okay, so start करते हैं. So today we are going to discuss about networking devices and functions of networking devices. Okay, so whenever working as a server administrator in any particular company, so there are lots of networking devices which we need to manage. Okay, there are switch, there are switch, router, hub, repeater, or other different kind of servers. Okay, for our in server rack environment, which is very important to know. The functions are the like configuration of devices as a server admin. Okay, so in today's session I'm going to explain some essential devices which we can use in server rack. Okay, so let me show the server rack first of all. Let me show the server rack. See, this is the server rack. Okay, and there are different devices in server rack. Okay, you can see this is the device like switch. यहाँ पर आपको अदर पावर सप्लाई के लिए मिल जाएगा, अदर पैच कॉर्ड्स, पैच पैनल, सर्वर्स, firewalls, और अदर different टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, सॉरी, डिवाइसेस कोई भी पर्टिकुलर सर्वर के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, राइट? So in every particular server rack or server environment, we need to manage these all devices. Okay, so there is two team. One is server admin, and second one is network admin. Okay, so I recommend you need to prepare with CCNA and MCSA. Okay, because CCNA complete your network or enhance your network skill, networking skills, and MCSA enhance server level skills. Okay, so you can manage, you can understand the infrastructure properly. But अगर आपको लगता है कि नहीं, बस इसके साथ या बस इसके साथ ग्रो कर पाएंगे, तो कभी ना कभी एक ऐसा साल 2 साल करियर, मतलब या काम करते हुए कोई ऐसा टाइम आएगा, साल 2 साल 3 साल, जो कि वापस आकर इन दोनों को कंप्लीट करना पड़ेगा. इवन गोइंग फॉर क्लाउड, इवन गोइंग फॉर साइबर सिक्योरिटी और एनी अदर डोमेन, ये दो समझ लो कि बेस हैं, रूट हैं. ओके, वी नीड टू प्रिपेयर बोथ कोर्सेस एवरी टाइम. क्योंकि नेटवर्क पता है तो हम सर्वर को अच्छे से कन्फिगर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, टोपोलॉजी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ें कर पाएंगे. ओके, सो नेटवर्क डिवाइसेस, वेट,
So there are different types of networking devices. So first device which we are going to discuss, which is hub. Okay. So hub is a networking device, and this device is used to connect multiple devices. Okay. This is the device which we can use to connect multiple devices. Like we can connect multiple endpoint devices, multiple endpoint PC. Okay. We can connect printers, we can connect a server, or many ports available on this device to connect the other devices. Either we can connect hub to hub. ओके, सो बेसिकली समझ लो कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके नेटवर्क में पोर्ट को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट विल यूज टू इंक्रीज द पोर्ट नंबर, बिकॉज व्हेन वी हैव or when we take any internet connection from ISP for home network, for small office. सो देर इज़ अ राउटर, बेसिकली वहाँ पर एक राउटर होता है जो कि आईएसपी प्रोवाइड करता है, और उस पर आप देखते होंगे कि 4 पोर्ट होता है. 4 पोर्ट होता है, इथरनेट पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ. 4 पोर्ट ऑन राउटर. सो वी कैन ओनली कनेक्ट 4 डिवाइसेस थ्रू इथरनेट. इफ़ यू वांट टू कनेक्ट वन सर्वर, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट वन endpoint device, one laptop, one printer. So that's all. But if you want to connect 100 plus devices, so you need to go with hub, okay, or switch. Nowadays, instead of hub, we can use switch device for better performance or better communication, because there are lots of problem in hub device. Okay, hub is used to connect multiple devices and share internet on multiple devices. But there is the problem in hub. Hub always broadcast incoming data to all connected port. Right? This is the main problem in hub. Whenever this is the A PC, this is B, this is C, D, E, F, whatever. So whenever A try to send the data to D, okay. So hub receive data from A PC. हब क्या करेगा, डेटा रिसीव करेगा APC से, and hub have no idea or no brain, there is no intelligence. हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट इनकमिंग डेटा, जो भी किसी ने ए ने भेजा, जो इनकमिंग डेटा हब के पास जो आया, हब विदाउट ब्रेन और विदाउट मेमोरी वर्क करता है, तो इसको नहीं पता किसको देना है. इसने तो डी को शेयर किया था, इस बंदे को, इस पीसी को. पर हब क्या करेगा, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट डेटा. एवरी टाइम हब आया डेटा ब्रॉडकास्ट किया, तुम भी लो, तुम भी, तुम भी, तुम भी, सारे पोर्ट पर वो ब्रॉडकास्ट करेगा. ड्यू टू दिस हब ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर. ओके, हब क्या होता है, एक फिजिकल लेयर डिवाइस है. एंड हब, देर इज नो मेमोरी, नो मेमोरी और नो इंटेलिजेंस, नो इंटेलिजेंस. एंड ड्यू टू दिस हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट डेटा. ये क्या करेगा, हब हमेशा डेटा को ब्रॉडकास्ट करेगा. ओके, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट डेटा. ओके, आई थिंक सबको पता है कि व्हाट इज ब्रॉडकास्ट. व्हाट इज ब्रॉडकास्ट? ओके, broadcast means devices, devices or any device send data to everyone, means one to all. कोई ऐसा कम्युनिकेशन जो एक से सभी को शेयर किया जाता हो, एवरी पर्टिकुलर कनेक्टेड डिवाइस. राइट, दिस इज द ब्रॉडकास्ट. ओके, so this is the hub or the function of hub. And hub operate at physical link layer, but there is some uh, like प्रॉब्लम, लाइक हब के पास कोई मेमोरी नहीं है, एंड हब कैन नॉट यूज़ मैक एड्रेस. ओके, हब कैन नॉट यूज़ मैक एड्रेस
और आईपी एड्रेस फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ये नहीं इस्तेमाल करता, ये बस आया कोई भी पैकेट, इसने एक पोर्ट पर रिसीव किया, सारे पोर्ट को ब्रॉडकास्ट किया। इट इज़ अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मीडियम। ओके, हाफ डुप्लेक्स communication medium. Half duplex means if one device, only one device can send data at a time. Okay, only one device can send data at a time. This is hub. Okay, means for example, this is hub. Okay, wait, let me explain. This is hub, and for example, this is PC A, and the MAC address is X, and the IP address is 10.0.0.10, and this is B and BPC, and the IP address is 10.0.0.20, and the MAC address is MAC is equal to B. So, and for example, there is a printer. This is printer, and the MAC address of this device is, for example, uh, like 20। ऐसा होता नहीं है, बट जस्ट एग्जांपल के लिए। एंड द आईपी एड्रेस इज 10.0.0.50। सो वेन एवर दिस डिवाइस मीन्स APC send the print command to the printer, or send the any data to the 20, or this machine means B computer. So only at a time device can send or receive. Okay, इस समय क्या कर सकता है, हाफ डुप्लेक्स मोड में डिवाइस या तो सेंड करेगा या तो रिसीव करेगा। एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकता। तो इससे क्या होता है, स्विच थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने लगा। ओके, लेकिन अगर हमारा हाफ डुप्लेक्स या नॉर्मली हमारा सारा कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट और ऐसा कुछ है, तो देर इज हाई लेवल ऑफ कोलिजन रेट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक और होता है, हाई लेवल ऑफ कोलिजन रेट। ओके, मीन्स डिवाइसेस और हब डिवाइस क्रिएट कोलिजन whenever A, B send the data or input the instructions for printer, okay, to print a command, to print a paper at a time, so data will be collided। अगर दोनों ने, ए और बी ने दोनों ने एक साथ प्रिंटर को डेटा शेयर कर दिया, तो हब के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दोनों के डेटा को मैनेज कर पाए। तो एट दैट टाइम हब क्या करेगा, डेटा को कोलाइड कर देगा, एंड ड्यू टू कोलिजन डेटा लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, डेटा लॉस होगा। ओके, सो नाउ डेज देर इज नो लाइक एनी यूसेज आर इंस्टॉलेशन ऑफ हब। हम लोग आजकल कोई भी कंपनी में देखा जाए तो इसका इस्तेमाल नहीं करते। ओके, हब की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्विच जैसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है सबको? आप लोगों के कंपनी में, किसी की कंपनी में हब जैसा डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है क्या? एनीवन, हब इस्तेमाल हो रहा है किसी की कंपनी में? नो सर। ओके, नहीं हो एज अ रहा है। मिनी स्विच यूज करते हैं हम लोग। ओके, तो हब लगभग ऑब्सोल्यूट है, कोई भी इसका चांस नहीं है कि कंपनियां टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इसका इंस्टॉल किया जाए। जहाँ पर ब्रॉडकास्ट मीडियम इस्तेमाल करना है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। बट ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या, कि अगर कोई डेटा रिसीव हो, कोलिजन का चांस बने, तो फिर क्या मतलब है ब्रॉडकास्ट का, राइट? सो स्विच रिप्लेस दी हब। स्विच क्या किया, हब को रिप्लेस करता है। ओके, बिकॉज स्विच कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। ओके, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस को ये कनेक्ट करता है। लाइक यहाँ पर भी देखो,
कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, है ना, PC 2, PC 3। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट लाइक, sorry, there are multiple port in every particular switch। तो इसमें क्या होता है, कोई स्विच 4 पोर्ट का होता है, कोई 8 पोर्ट का है, कोई 16 का है, कोई मे बी 12 का है, कोई 24 का है, कोई 48 का है, कोई 100 का बना दिया जाता है, कोई 200 पोर्ट का बना दिया जाता है, कहीं पर 500 पोर्ट का बना दिया जाता है। अब आप कहेंगे 500 पोर्ट का स्विच कहाँ होता है? होता है जहाँ पर स्टैकिंग टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है कि बहुत सारे पोर्ट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास अगर 16 या 12 पोर्ट का स्विच है, सो वी कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। और एक ऐसी डिवाइस है, वो एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर आप काम करना करना स्टार्ट किए, एज अ IT सपोर्ट इंजीनियर फ्रेशर की जॉब, या एज अ सर्वर एडमिन आप अभी वर्क कर रहे हो, या फिर एज अ CCNA सर्टिफाइड होने के बाद एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपको स्विच को मैनेज करना ही करना है। और आपने स्विच देखा ही देखा होगा, क्योंकि एक इतनी कॉमन डिवाइस है जो कि आपके नॉर्मल वर्क स्टेशन इन्वायरमेंट को मैनेज करने के साथ साथ लेयर 2 एंड लेयर 3 की सारी टेक्नोलॉजीज, मतलब मल्टीपल्स ऑफ लेयर 3 की टेक्नोलॉजी भी ये मैनेज करता है। लेयर 2 तो स्विच से ही मैनेज होता है, राइट? सो यह स्विच एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्मार्ट डिवाइस। ओके, स्मार्ट क्यों है? क्योंकि स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है डेटा को मैनेज कर, डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। स्विच यूज मैक एड्रेस फॉर फॉर डेटा कम्युनिकेशन और फॉर डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग। ओके, डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए स्विच क्या करता है? मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पोर्ट मैंने लिया और यहाँ पर एक PC कनेक्ट कर दिया, विच इज़ ए। एक पोर्ट ये मैंने लिया और यहाँ पर एक PC कनेक्ट कर दिया, विच इज़ बी। एक और PC मैंने कनेक्ट किया, सी। और इसका जो IP है, फर्स्ट कंप्यूटर का IP 10.0.0.10, दूसरे का 10.0.0.20, और इसका 10.0.0.30। ऐसे 24 पोर्ट हैं तो 24 PC कनेक्ट होंगे। मान लिया इसका मैक एड्रेस ए है, इसका मैक एड्रेस सी है, और इसका मैक एड्रेस बी है। ओके, तो स्विच क्या करेगा? मैक एड्रेस का इस्तेमाल करेगा। ओके, बस स्विच ब्रॉडकास्ट डेटा। स्विच क्या करता है? स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट डेटा। बट बट इसके आगे क्या होगा? बट ऑडियो जा रही है ना आप लोगों को? हेलो? ऑडियो जा रही है ना? आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं यस ऑडियो? सर, आ रही। हाँ सर। ओके। हाँ सर, आ रही है, आ रही है। ओके, बट क्या आगे मैंने क्या बोला कि ब्रॉडकास्ट करता है स्विच भी डेटा, तो हब और स्विच में क्या डिफरेंस है? ये भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। हब जो था वो एवरी टाइम ब्रॉडकास्ट करता था फॉर एवरी पैकेट। ओके, बट स्विच ब्रॉडकास्ट डेटा बट ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम। ओके, स्विच क्या करता था? डेटा ब्रॉडकास्ट करता था बट एक बार करता था। और वो क्यों करता था? ताकि ये अपनी टेबल को मेंटेन कर पाए। क्या, कौन सी टेबल को मेंटेन कर पाए? तो स्विच ब्रॉडकास्ट डेटा, म्यूट कर लीजिए, स्विच ब्रॉडकास्ट डेटा टू मेंटेन टू मेंटेन
मैक टेबल। ओके, स्विच क्या करता था? मैक टेबल को मेंटेन करने के लिए ब्रॉडकास्ट करता था। ओके, क्योंकि अगर मान लिया कोई नई, ये तीनों नए डिवाइस हैं, स्विच पर नया नया ऐड हुआ है, और ए ने डेटा सी को सेंड किया, तो स्विच को कैसे पता चलेगा कि ए का मैक एड्रेस क्या है, बी का मैक एड्रेस क्या है, सी का क्या है, और 24 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, सबका मैक एड्रेस क्या है? तो स्विच ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को। जब भी इसके पास कोई मैसेज आता है फर्स्ट टाइम, तो ये ब्रॉडकास्ट करता है। कोई नई डिवाइस ऐड हुआ, उसको भी एक ब्रॉडकास्ट करके उसका भी रिकॉर्ड अपने टेबल में ऐड करता है। ये ब्रॉडकास्ट बस इसलिए करता है कि ये अपनी टेबल के अंदर उसके मैक एड्रेस की एंट्री कर पाए। सिंपल। स्विच ब्रॉडकास्ट डेटा फॉर एआरपी कन्वर्सेशन और फॉर एआरपी मेंटेनेंस। स्विच क्या करता है जब ब्रॉडकास्ट करता है ना, तो स्विच यूज आर यूसेस एआरपी पैकेट, एआरपी पैकेट इन ब्रॉडकास्ट। ये मैं बहुत स्ट्रांग पॉइंट कवर करवा रहा हूँ, जितना भी आज कवर होगा। सर्वर इंजीनियर्स बहुत ध्यान से समझना। आपका एआरपी पैकेट जनरेट होता है। एआरपी पैकेट एक्चुअली होता क्या? व्हाट इज एआरपी? एनी आइडिया? व्हाट इज एआरपी? एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। क्या है ये? ये मैक एड्रेस को आईपी में कन्वर्ट करता है। मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है ना? ओके, कन्वर्ट वर्ड तो सर बहुत आपकी आवाज़ सॉलिड ठीक नहीं से नहीं आ रही मानेंगे। है, वॉल्यूम में सब लैग है। मेरी आवाज़ सबको प्रॉब्लम कर रही है? यस सर, अभी आ रही ठीक है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, इधर तो सही दिखा रहा है। ठीक है, आ रही है सर। तो मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन मेरा था कि मतलब एआरपी कन्वर्ट वर्ड तो उतना सॉलिड नहीं है, बट हाँ, एआरपी स्टैंड फॉर एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। और रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, इट इंस्टेड ऑफ कन्वर्ट वर्ड, क्योंकि बहुत बेसिक इंटरव्यू के लिए आप जाओ तो कन्वर्ट इस्तेमाल करो तो मान लिया जाता है, कंसिडरेबल होता है। जब एक एडमिन लेवल की जॉब के लिए आप जाएंगे तो कन्वर्ट वर्ड उतना सुटेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो गलत मान लेगा इंटरव्यूअर, एचआर तुरंत, बट लेकिन जिस लेवल पर आप बात करोगे उससे, उस लेवल पर वो चीज़ सही नहीं है। समझ रहे हैं आप? जैसे बच्चे छोटे होते हैं, वो अ, कहीं से कुछ अगर एब्यूजिव वर्ड, गाली गलौज सुन जाते हैं तो किसी को बोल देते हैं, कोई रिलेटिव आ जाए कुछ भी, तो उसको इग्नोर किया जाता है, बट कोई बड़ा बोल दे तो, आप समझ रहे हो? तो इसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन है, और आपने रिप्लाई भी किया कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, या इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, है ना? और एड्रेस को रिजॉल्व करने की एक प्रोटोकॉल है। तो इट रिजॉल्व मैक टू आईपी नहीं बोलेंगे, आईपी टू मैक। ये आईपी से मैक एड्रेस को क्या करता है? रिजॉल्व करता है। ठीक है, समझ में आया सबको? यानी कि यहाँ पर दो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2। इन्हीं दो को लेकर हम पहले बात करते हैं, और ये स्विच से हमारा इस तरीके से कनेक्टेड है। इस पर 24, अब यही वाला डायग्राम मैं इधर लेकर आ गया। तो मान लिया पोर्ट 1 से ये कनेक्टेड है, दिस इज F0/1, और यहाँ से ये कनेक्टेड है विच इज F0/2। क्लियर है? अगर यहाँ पर F0/1 कनेक्टेड है, और इसका मैक एड्रेस मैंने दे रखा है, सॉरी, आईपी 10.00.10, और इसका मैंने मान लिया दे रखा है 10.00.20। 20 का मैक एड्रेस है मैक इज इक्वल टू सी, और इसका मैक ए। ठीक है, तो जब भी ए ने, मतलब इस पीसी ने, मान लिया ये पीसी 1 है और ये हमारा पीसी
टू है। तो पीसी वन ने जैसे ही कोई मैसेज सेंड किया पीसी टू को, मान लिया कोई पिंग मैसेज सेंड किया, सो व्हाट टाइप ऑफ मैसेज इनसाइड ऑफ पिंग, इनसाइड ऑफ पिंग मैसेज, इन पिंग या पिंग में कौन सा मैसेज होता है? आईसीएमपी। यस, आईसीएमपी। तो मान लिया कि पीसी वन ने एक पैकेट जनरेट किया, और इस पैकेट का नेम हो गया आईसीएमपी। ठीक है, इको रिप्लाई के लिए होता है ये पैकेट। या मान लिया इसने एक मूवी इसको सेंड किया, ऐसे समझ लो, आईसीएमपी अगर नहीं किसी को आइडिया, तो इस पैकेट का नाम समझ लो आईसीएमपी एक मूवी है, धुरंधर मूवी है। अभी बड़ा कॉमेडी, कल रात में मैंने इस पर देखा किसी का। तो ये एक आईसीएमपी समझ लो एक मूवी है, और ये इसको भेज रहा है। तो ये तो पैकेट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई। भेज कौन रहा है, किसको भेज रहा है? यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन और होती है इस पैकेट के साथ। कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? दो, कि भाई हु इज द सेंडर। डिस्क्रिप्शन आईपी और डेस्टिनेशन मैप। यस, हु इज रिसीवर। भाई सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है जो ये मूवी भेज रहा है, ये पैकेट भेज रहा है? तो सेंडर हो गया 10.0.0.10, आईपी प्लस मैक एड्रेस हो गया ए, इसके साथ ऐसे हो गया। रिसीवर का क्या होता है, आईपी एड्रेस ऐड हो गया 10.0.0.20, एंड मैक एड्रेस हो गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। सिंपल। दिस इज द पैकेट, ओके, एज पर एआरपी। स्विच के कंडीशन में ये एक एआरपी पैकेट पहले जनरेट होगा। दिस इज फर्स्ट पैकेट एंड दिस इज सेकेंड पैकेट, फिर आपका सेकेंड पैकेट जाएगा। पहले हमारा एआरपी जाएगा। पहले स्विच क्या करेगा, मान लिया पिंग इसने इसको भेजा, पिंग लिखा और 10.0.0.20 से रिप्लाई लिया, तो पहला पैकेट पिंग नहीं जाएगा क्योंकि दोनों का अभी मैक टेबल प्रिपेयर नहीं है, राइट? दोनों का, यानी स्विच पर मैक टेबल प्रिपेयर नहीं है। और स्विच पर जो मैक टेबल प्रिपेयर होता है उसकी एंट्री किसके अंदर होती है? कैम टेबल। कैम टेबल, कैम का फुल फॉर्म क्या होगा? कंटेंट, एड्रेस, मेमोरी, राइट? इसमें क्या होता है, स्विच के मैक एड्रेस, मैक प्लस इंटरफेस प्लस स्टेटस, और टाइप ऑफ मैक एड्रेस की एंट्री क्या, स्टेटस होता है। तो ये इंफॉर्मेशन होती है। तो पोर्ट वन, पोर्ट टू, पोर्ट थ्री, पोर्ट फोर, पोर्ट फाइव, अब मान लिया कि ये वन पोर्ट पर है, ये टू पोर्ट पर है। तो वन की एंट्री तो इसको पता चल गया कि भाई वन कौन है, 10.0.0.10, इसकी एंट्री मैक एड्रेस की ये है क्योंकि इसका मैक एड्रेस यहाँ पर है। तो इसने वन के सामने मैक एड्रेस ए मेंशन कर लिया। बट इस पैकेट में एक आईपी जाएगा, यानी कि स्विच किस लेयर पर वर्क करता है? कल हम लोगों ने देखा था स्विच वर्क एट डेटा लिंक लेयर, यानी कि लेयर टू, डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर पर ये अगर ये वर्क करता है, तो डेटा लिंक लेयर पर हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर मैक एड्रेस ओनली इस्तेमाल होता है पैकेट को सेंड और रिसीव करने के लिए, आईपी एड्रेस का इस्तेमाल नहीं होता। तो स्विच आईपी का इस्तेमाल नहीं करता, बट डेटा लिंक लेयर पर स्विच के इस पैकेट में, एआरपी पैकेट में ये आईपी जाएंगी, और डेटा लिंक लेयर के अंदर इन आईपीस की एंट्री मिलेगी। ओके, बट ये एंट्री तब तक रहेगी जब तक हमारा एआरपी सोल्यूशन ना दे दे। यानी कि एआरपी पैकेट तब तक रहेगा, या पैकेट हमारा मैं आईपी से नहीं जा रहा है, मैक एड्रेस से जाएगा, बट पहले एआरपी हमारा क्या करेगा, इस टेबल को मेंटेन करेगा। तो स्विच के पास रिसीव हुआ। अब स्विच बोलता है कि अरे, सोर्स तो 10.0.0.10 है, जिसका मैक एड्रेस ए है, इसकी एंट्री कर दो। इसने बोला डेस्टिनेशन 10.0.0.20 है, बोला कि ठीक है। इसका मैक एड्रेस, स्विच के पास पता चला इसका मैक एड्रेस, इसका तो नहीं है। स्विच कहेगा फिर किसका है, हमारे साथ हमारे पोर्ट पर तो 20 लोग कनेक्टेड हैं, 20 कंप्यूटर, अब 20 कंप्यूटर में से किसका मैक एड्रेस है ना?
तो अब 20 मतलब ये 20 कंप्यूटर मतलब 20 पोर्ट पर ये डेटा सेंड का कि रुको मैं एक ऐसा मैसेज भेजता हूँ जो सबके पास जाएगा। तो ये सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। यही फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होता है। ये सबको मैसेज भेज दिया और सबका एड्रेस पूछ लिया कि भाई 10 0 0 20 कौन है आप में से। तो मान लिया इसने बोला कि F0/2 पर जो कनेक्टेड है ये 20 का कि यस मैं हूँ 20। कहेगा कि तो ARP पूछेगा कि 20 हो तो बताओ ना तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है। इसने बोला कि मेरा मैक एड्रेस सी है। बोलेगा ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पर जस्ट रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल RARP की हेल्प से यहाँ पर एक एंट्री होगी और पोर्ट एड्रेस 2 पर जो मैक एड्रेस है वो सी की एंट्री हो जाएगी। अब ARP हमारा ब्रॉडकास्ट मैसेज फिनिश। फिर हमारा ICMP पैकेट जो यूज़र ने यानी कि इस PC ने जनरेट किया था वो जाएगा और स्विच को रिसीव होगा। तो इसके अंदर फिर ये IP की एंट्री नहीं होगी, A+C ऐसे होगा जो स्विच के पास रिसीव होगा। तो स्विच कहेगा A कौन है, तो इसको समझ में आ गया ये A है। और किसको देना है, C को। इसको समझ में आ गया कि C हमारा ये है। तो ऑटोमेटिक इस पोर्ट 2 पर ही वो पैकेट रिसीव होगा। ये प्रोसेस होता है हमारे स्विच के अंदर फंक्शंस का। स्विच ARP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए, IP टू मैक, मैक टू IP। और स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है कंटेंट एड्रेस मेमोरी के अंदर सारी एंट्रीज करता है। और इस तरीके से वर्क करता है। आप लोग CCNA में पढ़े होंगे या कभी ज़रूरत पड़ेगी आगे, आप कुछ भी ऐसा है तो ज़रूर आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक लैब है, ये सिस्को का स्विच है। और मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं तो स्विच के अंदर क्या होता है, सो स्पेस मैक एड्रेस टेबल। एंट्री देखो यहाँ पर नहीं है। तो जैसे ही हम कोई भी ICMP पैकेट सेंड करेंगे यहाँ से यहाँ के लिए, कहीं के लिए भी, मल्टीपल PC को हमने सेंड कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में स्विच हमारा क्या करेगा, एक टेबल जनरेट कर लेता है। देखो सारे पोर्ट का एड्रेस इसने ब्रॉडकास्ट करके अपडेट कर लिया। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा मैक एड्रेस टेबल होता है उसके अंदर मैक एड्रेस की डिटेल होती है, टाइप ऑफ मैक एड्रेस एंट्री होता है, पोर्ट नंबर होता है, और VLAN की एंट्री भी होती है कि भाई VLAN कौन सा है। ओके, अभी ज़रूरत नहीं है VLAN वगैरह आपको समझने का। VLAN आप जिसने क्लाउड कंप्यूटिंग वाला कोर्स लिया है उसका VLAN बहुत अच्छे से वर्चुअल नेटवर्क के अंदर समझाया जाता है। तो पढ़ने को मिलेगा बहुत डिटेल में। सर्वर में भी NIC टीमिंग और इन सब चीज़ों के साथ मैं कराऊंगा बहुत सारा कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा कि हमारा स्विच क्या करता है, एक एंट्री मेंटेन करता है जो कि हमारा मैक एड्रेस टेबल की एंट्री होती है। ओके, स्मार्ट डिवाइस है, लेयर 2 डिवाइस है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या स्विच ओनली लेयर 2 डिवाइस है, तो नहीं। स्विच हमारा लेयर 2 प्लस लेयर 3 दोनों डिवाइस है। कुछ स्विचेज होते हैं जो बिल्कुल स्विच का काम करते हैं यानी लोकल एरिया में ओनली काम करते हैं, और कुछ स्विच ऐसे होते हैं जो नेटवर्क यानी दो डिफरेंट नेटवर्क को भी कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। ओके, सो यहाँ पर आप देखो मैंने कुछ एंट्री मेंशन किया है कि जब स्विच हमारा क्या करता है। वेट, स्विच हमारा कोई भी मैक एड्रेस के अंदर मतलब लेयर 2 की इंफॉर्मेशन सेंड करता है सोर्स के समय या डेस्टिनेशन के समय। तो देखो सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये ARP पैकेट से पता करता है। और लेयर 2 के अंदर ARP के जब एंट्री होती है तो वहाँ IP का भी कम्युनिकेशन होता है। IP बस और बस ARP टेबल के समय, ARP कम्युनिकेशन के समय अप्लाई किया जाता है। IP का इस्तेमाल होता है लेयर 2 पर, अदरवाइज लेयर 2 पर ओनली मैक एड्रेस का इस्तेमाल होता है डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। बट टेबल मेंटेन करने के लिए यहाँ पर IP भी इन्वॉल्व होता है थ्रू ARP प्रोटोकॉल। राइट, यहाँ पर एंट्री भी आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो। राउटर जैसी डिवाइस के बारे में, तो राउटर एक ऐसा इंटेलिजेंट डिवाइस है। ओके, राउटर बहुत सारे टाइप्स के राउटर आपने देखा होगा, ऐसा देखा होगा जो नॉर्मली घर वर में भी लगता है।
कंपनी के अंदर जो राउटर्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। तो बट इंटरनेट चलाने के लिए ऐसे राउटर्स आपने देखा होगा नॉर्मल घरों में, कंपनियों में। ओके, ये सब राउटर्स हैं। इन राउटर्स का मतलब होता है कि हम लोग राउटिंग करते हैं। राउटर का मेन फंक्शन क्या होता है? राउटिंग। रूट द पैकेट। रूट द पैकेट का मतलब क्या होता है? मीन्स राउटर इज द डिवाइस which is used to send the data to the multiple different network. Okay, router is a device which connect different network or multiple network. अभी मेरा वर्क स्टेशन जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लिया यहाँ पर मैंने एक्स आईएसपी का इंटरनेट कनेक्शन राउटर के थ्रू इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। आप अपने घर पर मान लिया वाई आईएसपी का यूज कर रहे हो। तो ये सभी डिफरेंट नेटवर्क आपस में कैसे डेटा शेयर कर पा रहे हैं? आप में से कोई दिल्ली लोकेशन से है, कोई मुंबई साइड से है, कोई दुबई से है, आप में से यूके से भी एक दो लोग हैं। तो कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कनेक्ट हो पा रहे हो? राउटर की हेल्प से। ओके, यानी कि राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो इंटरनेट पर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करके इंटरनेट जैसा मॉडल बनाता है, इंटरनेट कम्युनिकेट कराता है। मैं आप लोगों को नेटवर्क इंजीनियर की तरह ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक ऐसा गाइड दे रहा हूँ जिससे आप सर्वर के पार्ट को समझ पाओ अच्छे से। सो राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस, है ना? ओएसआई मॉडल के लेयर 3 डिवाइस का ये पार्ट है। और लेयर 3 का मतलब होता है नेटवर्क लेयर, और इसका काम होता है डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना और बेस्ट पाथ फाइंड करना। ओके, बेस्ट पाथ फाइंड करना। यानी कि अगर मैं इंडिया में हूँ और मैंने अपने फ्रेंड को यूएसए में जो है उसको एक ईमेल सेंड किया, या मैंने आज घर पर बर्थडे पार्टी था उसकी बहुत सारी फ़ोटो लिया और मैंने बोला कि ये देखो हम लोग बर्थडे पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। बोला ठीक है, मुझे मेल कर दो, व्हाट्सअप कर दो, कुछ भी कर दो, बरा मैं देखूं फोटोज़ वीडियोस क्या चल रहा है। तो मैंने यहाँ से 10 फोटो क्लिक किया और इसको यहाँ पर सेंड किया। तो ये कैसे यहाँ तक गया? ये सारी चीज़ें। तो इंडिया से यूएसए जाने के लिए कोई एक रास्ता तो होगा नहीं, इंटरनेट का हजारों रास्ते होंगे, बहुत सारे आईएसपी होंगे। सो बट सारे रास्ते इस्तेमाल तो करेगा नहीं। तो राउटर क्या करता है? माई राउटर, ओके, या माई होम राउटर डिसाइड which one is best route to send the packet from one network to another network, or which one is best path to connect the neighbor. अब हमारे राउटर को डायरेक्ट यहाँ का रूट नहीं पता होगा, बट हाँ इंटरनेट पर हमारा राउटर आईएसपी से कनेक्ट होगा। आईएसपी दुनिया के सारे उससे कनेक्ट होता है। तो उसको पता है कि भाई यहाँ से यूएसए का 10 रास्ता है, 10 में से बेस्ट कौन सा है जाने के लिए अभी करंटली हमारे इस लोकेशन से, राइट? तो राउटर बेसिकली डिसाइड बेस्ट पाथ यूजिंग राउटिंग मैट्रिक्स। राउटर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल करता होगा जो ये समझ जाता है कि ये वाला रास्ता सबसे अच्छा है। राउटर यूज मैट्रिक्स। ओके, in matrix router use different kind of like component or technology. Like router use bandwidth for best route or for best path. Router use administrative distance value for best path. Router use delay time, cost value, hop count, and other different kind of protocols for best route decision. ओके, तो राउटर बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करता है। ओके, और ये पैकेट को फॉरवर्ड करता है और आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे स्विच इस्तेमाल करता है मैक एड्रेस, वैसे राउटर इस्तेमाल करता है आईपी एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। ओके, आजकल इंटरनेट हम लोग इसी की हेल्प से यूज़ करते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होता है राउटर द्वारा, ओ एस पी एफ, बी जी पी, ई आई जी आर पी, है ना, मल्टीपल। ऐसा जब आप सिस्को की टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सब प्रोटोकॉल्स पढ़ाया जाता होगा, पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा राउटर होता है, लेयर 3 डिवाइस है।
ओके, अभी मैं अपने वर्क स्टेशन से, आप अपने घर से, अपने ऑफिस से या डिफरेंट लोकेशन से कनेक्ट होकर हमारे साथ सेशन ले पा रहे हो ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन। और इंटरनेट पर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट होते हैं और उनको कनेक्ट कराने का काम कौन कर रहा है? राउटर कर रहा है, राइट। सो ब्रिज है, रिपीटर है। ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज बेसिकली कनेक्ट एंड फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन टू लैन सेगमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल, in my company there is two building 1 and building 2. Building 1 has LAN 1 and building 2 has LAN 2. ओके, इसके पास LAN 1 है और इसके पास LAN 2, मीन्स एक LAN यहाँ पर है और एक LAN यहाँ पर है। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट बोथ LAN विथ सेपरेट कोलिजन, भाई इस LAN के अंदर 200 कंप्यूटर हैं, इसके अंदर 300 कंप्यूटर हैं, 300 कंप्यूटर इन LAN 2, 200 computer in LAN 1. So, as a server admin, as a network admin, I don't want to allow the 200 computer collision directly participate in LAN 2 और with LAN 2 collision। क्योंकि अगर ऐसा होगा जैसे इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के सभी लोग लंच होने जाए और एक जगह बैठ जाएं, तो क्या होगा? 500 की भीड़ हो जाएगी। बट इनका एक अलग लाइक कैफेटेरिया बना दिया, इसका एक अलग बना दिया, तो सेपरेट हो गया। हैं एक ही ऑफिस के, एक ही कंपनी के, सब कुछ ऐसे हैं, बट सेपरेट हो गया, मैनेज करना आसान है। वैसा नहीं है कि यहाँ का जो चाय बनाने वाला है परेशान हो गया, 500 लोगों को कैसे चाय देगा, है ना? तो टू लैन सेगमेंट को मैनेज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये भी लेयर 2 डिवाइस है, मैक एड्रेस इस्तेमाल करता है। बट अगर इन दोनों लैन 1 लैन 2 को कनेक्ट करना है तो हम एक ब्रिज लेंगे और दोनों को कनेक्ट कर देंगे। स्विच जैसा ही दिखने वाला डिवाइस होता है और इससे हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या करेगा? इधर की ट्रैफिक इधर, इधर की ट्रैफिक इधर। बट अगर यहाँ की कोई ट्रैफिक यहाँ जानी चाहे तो ये ब्रिज क्या करेगा? उसको कनेक्ट कर देगा, ट्रैफिक को पास कर देगा, फिल्टर करेगा। ओके, सो आज हम इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए या इस चीज़ के लिए स्विचिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके स्विच जैसी डिवाइस भी इस्तेमाल करते हैं और दो डिफरेंट नेटवर्क यानी लैन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं। या स्विच के साथ ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से रिप्लेसेबल है ना? स्विच द्वारा ये क्या है? रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि स्विच आज एक बहुत स्मार्ट रोल प्ले करता है। स्विच में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्चुअल लैन बना सकते हो। इवन देन दो लैन बनाने हैं, एक ही स्विच पर दो लैन बन जाते हैं। सेम नेटवर्क रहेगा बट दो डिफरेंट लैन की तरह, दो डिफरेंट नेटवर्क की तरह काम करेंगे, है ना? जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल लैन। ओके, तो बट अगर हम ब्रिज का वन वर्ड आंसर करें तो ब्रिज कनेक्ट टू लैन सेगमेंट टुगेदर एंड रिड्यूस द कोलिजन, क्योंकि वो दोनों लैन की ट्रैफिक को फिल्टर करता है और जब जरूरत पड़े तो कम्युनिकेट करवाता है। ओके, रिपीटर हमारा लेयर 1 यानी कि फिजिकल लेयर डिवाइस है और इसका काम होता है नेटवर्क की रेंज को एक्सटेंड करना। ओके, रिपीटर रिपीट और एम्पलीफाई वीक सिग्नल इनटू स्ट्रॉन्ग सिग्नल। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में वाईफाई लगवाते हैं या घर पे वाईफाई लगवाते हैं। और मेरा 3 फ्लोर का घर है ना? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पर मेरा वाईफाई इंस्टॉल होकर चला गया। बट अगर जो थर्ड फ्लोर की हम बात करें, है ना, लास्ट फ्लोर की अगर हम बात करें, तो वहाँ का डिफरेंस अपने राउटर से यानी कि वाईफाई राउटर से दूर पड़ जा रहा है। तो वाईफाई सिग्नल यहाँ पर प्रॉपर नहीं जाता और यहाँ पर जो घर के मेंबर हैं उनको, या कंपनी के मेंबर हैं, मान लिया 3 फ्लोर का ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पर राउटर लगा, वाईफाई चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे तो बिल्कुल स्ट्रांग सिग्नल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। थर्ड पर तो इस कहीं पर अच्छा है, बट थोड़ा और दूर गए फ्लोर से तो फिर वहाँ पर क्या होता है? वीक सिग्नल हो जाता है। वाईफाई का 1 पॉइंट दिख रहा है, 2 पॉइंट दिख रहा है, तो प्रॉपर रेंज नहीं होता, वीक सिग्नल बोलते हैं। तो रिपीटर जैसी डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके हाई सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए।
ओके। ऐसी कौन सी डिवाइसेस हम वाईफाई एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं? एपी। एपी। सो इन रियल टाइम इन्वायरमेंट वी कैन यूज एक्सेस पॉइंट। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस पॉइंट लेंगे, मार्केट में 1000 2000 रुपए का मिलेगा बिल्कुल। आपने अभी जो इंटरनेट चलाने वाला राउटर देखा था वैसे ही होगा। जैसे अभी मैं आपका जो कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हूँ, जो अभी करंटली जो मैं कनेक्ट हूँ वाईफाई से, तो वो मेरा एक एपी ही है। मेरा मेन राउटर कहीं और है। आई थिंक उसका जो एड्रेस है 192.168.1.1, शायद यही है, हाँ यही है। मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ, कुछ ये है एक्सेस पॉइंट। ओके। तो एज ए एक्सेस पॉइंट मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं और से इसको मैंने कनेक्शन लेकर इस्तेमाल किया और ये सारी चीज़ें। ओके। तो सिंपल कहने का मतलब कि रेंज को एक्सटेंड करने के लिए एक्सेस पॉइंट, वाईफाई रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, और वायर्ड एक्सेस पॉइंट भी होते हैं, क्योंकि वायर्ड की भी रेंज होती है और वायरलेस की भी लिमिटेड रेंज होती है। भाई नॉर्मल वाईफाई कितना 10 मीटर का बाय डिफॉल्ट एरिया कवर करता है, 10 मीटर। कुछ राउटर होते हैं जो अप्रॉक्स कि 40 फीट। और, हाँ और ज़्यादा कवर करते हैं, बट मिनिमम 10 मीटर कवर करता है, और हो सकता हो कि हमारा यूज़र 15 मीटर पर हो फिर। तो हम अपने फर्स्ट फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर से अपने राउटर से एक लैन केबल लेंगे, और लैन केबल 15 मीटर दूर रखे, या 15 मीटर दूर ऑफिस में एक और वाईफाई राउटर यानी कि एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल कर देंगे, और यहाँ पे हमारा वाईफाई कॉन्फ़िगर हो जाएगा। यहाँ के वाईफाई इससे काम करेंगे, यहाँ के यूजर इस वाईफाई से काम करेंगे। यहाँ पर अलग वाईफाई नेम हो जाएगा और पासवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। ऐसा एक्सेस पॉइंट हम वायर्ड भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि वायर्ड की भी रेंज लिमिटेड होती है। मान लिया मेरा ऑफिस 1 किलोमीटर में है, तो अगर मेरा यहाँ पर मान लिया कि सेंट्रल सर्वर है, यहाँ पर सेंट्रल सर्वर है। अब सेंट्रल सर्वर से हमारा जो सर्वर रैक, एक और सर्वर रैक यहाँ पर, एक सर्वर यहाँ पर है, दोनों के बीच में 150 मीटर का डिफरेंस है। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये दो यूज़र हैं, सर्वर लेंगे तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम फाइबर क्यों ना इस्तेमाल करें लेटेंसी मेंटेन करने के लिए। कुछ लोग सोच सकते हैं वीडियो कहीं देखने को पा जाए तो गलतियाँ निकालेंगे। बट मान लिया कि ये यूज़र 1 है, यूज़र 1, और ये यूज़र 2। अब यूज़र 1 यूज़र 2 के बीच में 150 मीटर का डिफरेंस है, लैन केबल से कनेक्शन देना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि लैन केबल का डिस्टेंस कितना होता है, 100 मीटर मैक्सिमम, 99 मीटर, है ना। 100 मीटर, 0 to 99 ले लो। तो अगर ये 100 मीटर का एरिया कवर कर रहा है तो 150 मीटर है, यहाँ तक सिग्नल नहीं जाएगा लैन केबल से डायरेक्टली। तो हम बीच में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपीटर। ओके। और ये मान लिया कि रिपीटर इस सिग्नल को रिसीव किया, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, मतलब सिग्नल को बूस्ट करेगा, और यहाँ पर पैकेट डिलीवर होगा। तो ये हमारा रिपीटर डिवाइस है। बट अगर हम आज बात करें तो रिपीटर एक बेस्ट सोल्यूशन है या फिर और कोई। मान लिया आपकी कंपनी है जहां आप काम कर रहे हो, और आपकी कंपनी एक 500 या 3 किलोमीटर के एरिया में पूरा उसका कैंपस है। अब स्टार्टिंग में एक ऑफिस है, मतलब सेंट्रल सर्वर रूम है, और एक 1.5 किलोमीटर दूर आपका सेंट्रल सर्वर रूम दूसरा वाला है। इन दोनों सेंट्रल सर्वर रूम को कनेक्ट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, रिपीटर या कुछ और? फाइबर यूज करेंगे। फाइबर यूज करेंगे। ओके। तो फाइबर यूज करने से बेनिफिट क्या होगा, और अगर हम नॉर्मल लैन केबल इस्तेमाल करें तो लैन और सिग्नल फाइबर में लॉस क्या, होगा ना, और किसमें उसका, सिग्नल लॉस होगा? हाँ, कैट केबल का यूज करेंगे, उसमें सिग्नल लॉस होगा, और इसमें अपना फाइबर यूज करेंगे तो इसमें सिग्नल लॉस नहीं होगा। हम्म। अगर हम यहाँ पर बढ़िया एम्पलीफायर वगैरह इस्तेमाल करें, रिपीटर वगैरह, तो सिग्नल लॉस नहीं होगा। बट उसमें सर कितना यूज करेंगे रिपीटर? अभी इसमें तो अपना एक ही केबल में काम हो जाएगा, हाँ। उसमें रिपीटर यूज करेंगे तो अभी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कितना डिस्टेंस है तो उसके
बेस पे अपने को रिपीटर यूज करना होगा, और इधर अगर फाइबर यूज करेंगे तो फाइबर में हम्म। एक ही फाइबर में काम हो जाएगा। राइट। तो लैन इन इसके लिए हम क्या रिपीटर वगैरह हम लोग एक स्मॉल फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वेन एवर वी आर गोइंग टू कनेक्ट central room or server room, okay, two server room together, so we need to go with fiber technology, okay। क्योंकि फाइबर अगर नहीं होगा तो हमारा लेटेंसी देखने को मिलेगा, राइट। लेटेंसी, डीले टाइम, ओके। और सिक्योरिटी भी, है ना, सिक्योरिटी का भी इशू आएगा और ये सारी चीज़ें। एंड जो लैन है आफ्टर ऑल ये जो प्रोसेसिंग करता है ये हमारे सीपीयू पर लोड पड़ता है, हमारी मेमोरी पर लोड पड़ता है डिवाइसेस के, राइट। बट जो फाइबर इस्तेमाल होता है तो फाइबर में हम एसएफपी वगैरह इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। और वो अपने आप में क्या होता है, एक मिनी कंप्यूटर होता है। एसएफपी मॉड्यूल वगैरह जो होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, एक मिनी कंप्यूटर्स होते हैं जब फाइबर मॉड्यूल डिज़ाइन किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। तो उस कंडीशन में उनका इस्तेमाल होता है और वो सेल्फ लाइक कंप्यूटिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। और वो हमारे सर्वर पर डायरेक्ट लोड नहीं अप्लाई करते हैं या इम्प्लीमेंट नहीं करते, है ना। सर्वर की प्रोसेसिंग को थोड़ा वो लाइट लाइट कर देते हैं या अपने आप को ही यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए और सारी चीज़ें के लिए। इनके पास खुद का क्या होता है, प्रोसेसिंग सीपीयू या सारी चीज़ें, समझ लो ऐसा होता है। तो अच्छा ठीक है, हम लोग फाइबर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फाइबर के थ्रू कोई रेंज की लिमिट नहीं है। हम लोग अगर 10 किलोमीटर दूर हमारा ऑफिस है तो भी हम एक ही फाइबर से कनेक्ट कर लेंगे, है ना। यस। ओके। तो 10 किलोमीटर दूर अगर हमारा है तो कौन सी फाइबर लगेगी। ऑप्टिकल फाइबर। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर में ही कौन सी फाइबर। आर्मंड। चलो इसको हम ईथरनेट का टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल रिपीटर। रिपीटर मतलब कि सिग्नल को रिपीट कराने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो। मॉडेम का काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। जो आईएसपी लाइन होती है वो हमारे राउटर मॉडेम के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। आजकल डायरेक्ट राउटर इंस्टॉल होता है घरों पर, कंपनियों में, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन नहीं होता, आईएसपी एंड से ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, राइट। एक्सेस पॉइंट आपने देखा कि हमारा एक्सेस पॉइंट वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, डब्ल्यूएपी बोलते हैं। और वायर्ड एक्सेस पॉइंट को भी डब्ल्यूएपी ही बोल सकते हैं। तो वाईफाई रेंज को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ हेलो लोकेशन पर अगर हमें, हाँ, वाईफाई सर्विस सर, देना है एक तो इसका क्वेश्चन था। इस्तेमाल करते हैं। हम्म। आप ये मॉडेम का बताया था अभी। ये कंपनीज में मॉडेम यूज नहीं होता है, डायरेक्ट आईएसपी अपना राउटर से कनेक्ट हो जाता है, तो ये इसका खत्म हो गया मतलब क्या, थोड़ा नहीं, ब्रीफ करो। हमारे आईएसपी एंड पर मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन और सारी चीज़ें होती हैं, है ना। वो ओके। हमारे पास डायरेक्ट इंटरनेट लाइन आ रही है बट सारी टेक्नोलॉजी आईएसपी एंड से मैनेज होती है, राइट। हम तो फाइबर डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं राउटर पर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कौन करेगा। फिर हमारा कन्वर्सेशन कैसे होगा, इंटरनेट पर डेटा कैसे जाएगा विदाउट मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, राइट। तो हो सकता है राउटर में टेक्नोलॉजी आ गई हो तो इसीलिए ऐसा तो है। राउटर आ गए, ADSL+2 राउटर मॉडेम, ये दोनों उसके साथ होते हैं, है ना। ओके। हमारे राउटर्स में अभी आप देखोगे तो ADSL 2+ राउटर मॉडेम ये सब लिख कर आते हैं, तो मतलब उसमें दोनों कैपेबिलिटी होती है। क्या। बट अगर हम डायरेक्टली चाहें तो आईएसपी से लाइन कनेक्शन लेकर यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा वो नहीं होता, फिर वो हमारा आईएसपी एंड पर चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, मैनेज होती हैं वहाँ से भी, राइट। राइट। ओके। तो ये है। बट सिंपल इन टर्म ऑफ मॉडेम अगर हम बात करें तो मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मीन्स एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, ओके। पहले अगर हम देखें तो हमारे सिस्टम पर
अगर राउटर नहीं होता या मॉडेम का बस इस्तेमाल होता तो मॉडेम हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है ना। मॉडेम ही हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। क्लियर है। क्लियर। आईएसपी जो लाइन मिलती है वो मान लिया मॉडेम द्वारा हैंडल होता है, बट आईएसपी की लाइन मॉडेम द्वारा हैंडल होता है तो हम लोग राउटर इस्तेमाल करते हैं फॉर राउटिंग फॉर बेस्ट लाइक नेटवर्किंग। लेकिन मॉडेम इस्तेमाल होना है ताकि हमारा एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग हो सके। बट अगर बहुत पहले हम जाएं तो जब राउटर हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते थे तो मॉडेम हमारे घरों पे इस्तेमाल होता था। मॉडेम डिवाइस आता था, याद है सबको, किसी ने अगर बहुत 2006-7 में इस्तेमाल किया हो। तो इन 2006, 2005, 6, 7 के ड्यूरेशन में हमारे घर पे बीएसएनएल का कनेक्शन था जो कि मॉडेम बेस्ड वो चीज़ होती थी। इसमें हमें एक यूज़र नेम मिलता था जिसको हम डायल अप कनेक्शन बोलते थे क्रिएट करते हुए। तो डायल अप कनेक्शन जब बनाते थे इंटरनेट चलाने के लिए तो हमें वो यूज़र नेम और पासवर्ड लगता था, और वो कौन देता था? सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो मॉडेम के थ्रू हमारा क्या होता था? मॉडेम पर दो लाइन होती थी टेलीफोन की कनेक्टिविटी के लिए, मतलब यहाँ पर एक पीएसटीएन डिवाइस होता था। अब ये जब चीज़ें उतना यूज़ में नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं होता है। तो उस डिवाइस से क्या होता था, एक मॉडेम पर चला जाता था और एक टेलीफोन पर चला जाता था, राइट, टेलीफोन के लिए और ये सब। और इधर हमारा RJ11 वाला मतलब इंटरनेट लाइन वाला कनेक्शन होता था, आईएसपी लाइन वाला। तो मॉडेम पर हम लोग क्या करते थे, एक यूएसबी केबल इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डायल अप कनेक्शन क्रिएट करते थे, है ना। और वहाँ पर हम अपने आईएसपी से मिले हुए यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आज भी हम ये सेटअप देखते हैं, बट ये सब चीज़ें नए टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस हो चुकी हैं, है ना। जो हमारा फ्रेम रिले वगैरह ये सब भी रिप्लेस हो चुका है। बट ऐसा होता था, और फिर जैसे ही हम यहाँ पर डायल अप कनेक्शन क्रिएट करते थे और ये डायल करते थे यहाँ पर कनेक्ट पर जाकर जैसे ही करते थे तो कनेक्शन डायल अप कनेक्शन के थ्रू समझ लो कि एक डायल नंबर डाला जाता था आईएसपी का। तो उस नंबर को जब हम डायल करते थे तो इंटरनेट कनेक्शन हमारा स्टेब्लिश होता था। बट अगर कॉल आ जाती थी तो हमारा इंटरनेट चलना बंद हो जाता था। आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो 2G और वो फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी नहीं, आज हम लोग बहुत एडवांस जनरेशन में हैं। हालांकि मिले या ना मिले वैसा कनेक्शन, है ना, लेकिन है। जनरेशन के नाम पे तो 5G जनरेशन में हम लोग हैं जहाँ पर GBPS में कनेक्शन होता है। बट अभी आप यूज़ करो तो 200 MBPS, 300 MBPS में ही हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि अगर 5G जनरेशन है तो GBPS मिनिमम मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होता था। अच्छा ठीक है, इन सब चीज़ों पर हम लोग नेटवर्क के स्टूडेंट हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा उस पर बढ़ें आगे। फायरवॉल या एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल वगैरह डिवाइस सबको पता है क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है। फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस है जो कि आप नहीं पढ़ते हो तब भी इसके बारे में आधा आइडिया होता है ना, कि फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम, यानी कि ये सॉफ्टवेयर भी है और ये हार्डवेयर में भी अवेलेबल है। हार्डवेयर फायरवॉल किस तरीके का डिवाइस है? सॉफ्टवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल और हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। बट फायरवॉल की ओनली अगर मैं बात करूं तो फायरवॉल क्या करता है, पॉलिसीज क्रिएट करता है, सिक्योरिटी पॉलिसी। और ये सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करता है ताकि हमारे नेटवर्क में आने वाले और नेटवर्क से जाने वाले कनेक्शन को फिल्टर कर सके, राइट। यानी कि फायरवॉल इज यूज टू सिक्योर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स, राइट। ये हमारे नेटवर्क में मान लिया कि कोई इंट्रूडर है, कोई हैकर अटैकर है, उसने एक मैलवेयर भेज दिया। तो अगर हमारे नेटवर्क में वो मैलवेयर आ रहा है तो हमारी फायरवॉल क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। और फायरवॉल डिटेक्ट करेगा तो हमारे मैलवेयर मतलब उस पर्टिकुलर पैकेट को वो ब्लॉक कर देगा, कहेगा भाई इसमें तो वायरस है। फायरवॉल से कोई पॉलिसी आपने क्रिएट किया, कोई पैकेट बाहर गया, बाहर आपने एक्स को भेजा था, पैकेट रिप्लाई देते हुए एक्स की जगह वाई की भी एंट्री मिल गई, तो फायरवॉल कहेगा अरे वाई के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है,
तो पैकेट आने नहीं देगा, इसको कह देगा रुको, ब्लॉक कर दो। एडमिन चेक कर लेगा और रिकॉर्ड देखेगा कि भाई वाई कौन है। अगर वो अप्रूवल देगा तो चले जाना, है ना। तो फायरवॉल बेसिकली मेंटेन द सिक्योरिटी बाउंड्री फॉर एनी नेटवर्क। ओके, ये प्रोटेक्ट करता है मैलवेयर से, इंट्रूडर एक्टिविटी से, डॉस अटैक, डीडॉस अटैक, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक या सिक्योरिटी सिस्टम को ये मेंटेन करता है, ताकि हमारे नेटवर्क का जो कन्वर्सेशन है, जो पैकेट कम्युनिकेशन, जो डेटा सेंडिंग रिसीविंग प्रोसेस है, वो सिक्योर हो सके। राइट। फायरवॉल आज हम लोग देखें तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, एनी आइडिया व्हाट अबाउट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल? फायरवॉल तो सबको पता था जो मैंने अभी बताया, बट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या करता है? सर ये जो हम जी स्केलर वगैरह यूज करते हैं ऑफिस में, वीपीएन का जो पूरा नेटवर्क है जिसमें सारा डेटा फ्लो बिटवीन टनल्स ही होता है, वो भी एक फायरवॉल ही है। बिल्कुल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बेसिकली मैनेज एप्लीकेशन कंटेंट आईडी, है ना, चैट एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ये मैनेज करता है, मेंटेन करता है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इस्तेमाल करें या लेटेस्ट हार्डवेयर फायरवॉल इस्तेमाल करें, तो उसमें हम कंटेंट आईडी भी ब्लॉक करते हैं, यूज़र बेस्ड फिल्टरिंग भी अप्लाई करते हैं, आईपी बेस्ड, मैक बेस्ड, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड कंटेंट भी फिल्टर करते हैं। जैसे मान लिया कि अगर हम फेसबुक अलाउ करना चाहते हैं, बट फेसबुक में हम चाहते हैं चैट ब्लॉक हो जाए, मैसेंजर वाला, तो वो ब्लॉक हो जाएगा, है ना। मैं अपने कंपनी में फायरवॉल इंप्लीमेंट किया। हमारी कंपनी में 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सब अपने फ़ोन से, अपने टैबलेट से, अपने लैपटॉप से काम करते हैं। अब उसमें से कोई व्हाट्सअप एक्सेस करना चाहता है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं, बट जब कोई मैसेज भेजना चाहेगा तो ब्लॉक हो जाएगा। राइट। मैसेज कन्वर्सेशन नहीं कर पाएगा, डेटा मतलब नॉर्मल व्हाट्सअप एक्सेस कर पाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक कर दी जाती हैं। और ये सारी चीज़ें नॉर्मली, आ, आप कोई भी वेब सर्वर के अंदर देखें तो मल्टीपल सर्विसेज होती हैं एक सर्वर को ऑपरेट करने के लिए, उसमें से एक सर्विस अलाउ करना है, वाई ब्लॉक करना है, ये सब इसके अंदर पॉसिबल होता है। ओके, कभी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसके बारे में देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एक हार्डवेयर डिवाइस है या नेटवर्क डिवाइस है, जो कि है निक कार्ड। इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। व्हाट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? इसके बारे में तो आप ही लोग बताओगे। बताइए, व्हाट इज एनआईसी? लेन लेन क्या कनेक्ट करते हो? हम्म। इस ईथरनेट कार्ड, लैन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो दिस इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस के लिए, है ना, इसी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो वी कैन कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस निक कार्ड। ओके, और एनआईसी कार्ड। तो ये जो निक कार्ड है या एनआईसी कार्ड बोलो आप इसको, तो यही इस्तेमाल किया जाता है दो कंप्यूटर को, कंप्यूटर टू स्विच, कंप्यूटर टू राउटर, वट एवर, इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। दो कंप्यूटर आपस में वायर्ड और वायर, ये दो तरीके का होता है, एक वायर्ड होता है और एक वायरलेस होता है। यहाँ पर देखो, एक हमारा क्या है, ये वाला वायर्ड है और ये वायरलेस है, ये यूएसबी वाला वायरलेस है। ओके, तो वाईफाई से कनेक्ट करना है तो वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, और अगर वायर्ड से कनेक्ट होना है तो नॉर्मल हमारा लैन कार्ड होता है। एक हमारा लैन होता है, एक हमारा डब्लू लैन बोला जाता है, वायरलेस लैन कार्ड, या सॉरी, वायर्ड एनआईसी और वायरलेस एनआईसी। ओके, तो एनआईसी कार्ड का होना जरूरी है। अगर ये एनआईसी कार्ड हमारे सर्वर, सॉरी, हमारे कंप्यूटर पर, हमारे मोबाइल या हमारे कहीं पर नहीं है, तो मतलब कि हम उस डिवाइस से इंटरनेट लेवल का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। राइट।
So this is the mandatory card to use the internet service or network service, right? इसी कार्ड का मैक एड्रेस होता है और इसी कार्ड पर हम लोग आईपी एड्रेस अप्लाई करते हैं। क्लियर है सबको? और इस पे जो मैक एड्रेस होता है ये मैन्युफैक्चरिंग के समय जब वेंडर होते हैं वो असाइन करते हैं। तो आईपी तो आप बार बार बदल सकते हो बट मैक एड्रेस हमारा फिक्स होता है, इसीलिए हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल या किसी भी ऐसी डिवाइस पर जिस पर निक कार्ड जो है उसी डिवाइस का परमानेंट एड्रेस बोला जाता है। अगर ये कार्ड बदल दें तो हमारी डिवाइस का मैक एड्रेस बदल जाएगा, यस बदल जाएगा। अगर हमारे पास लैपटॉप है उसमें वाईफाई कार्ड जो लगा है छोटा सा होता है लैपटॉप वाईफाई कार्ड, ये तो आप लोग देखे होंगे, मैं दिखाता हूँ। तो अगर मान लिया कि हमें अपने वाईफाई, बहुत सारे हैकर अटैकर होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल होते हैं, वो अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई साइबर क्राइम करने के लिए, तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि वो लैपटॉप से अपना साइबर क्राइम करने के बाद या क्राइम करने के बाद उसका नेटवर्क कार्ड बदल दें, तो फिर उनका फिजिकल आइडेंटिटी हट जाएगा, आईपी की कोई आइडेंटिटी वैसा होगा नहीं। हालांकि जिस नेटवर्क में वो इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से उसको ट्रैक किया जाएगा कि इस लोकेशन से इस बंदे ने इंटरनेट सर्विस लिया था, और वो जिसका भी इंटरनेट सर्विस होगा फिर वहाँ से उसको पकड़ा जा सकता है, बट वो एक अलग प्रोसेस है। सिंपल मेरे कहने का मतलब कि दिस इज द लैन इंटरफेस कार्ड। ओके, इसी पर मैक एड्रेस या परमानेंट एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम लैपटॉप वाईफाई कार्ड, तो छोटा सा एक कार्ड होता होगा, अक्सर आपने देखा होगा ये वाला, ये सब है ना, ऐसा लगा होता है ना, दो पिन लगी होती है जो आपके डिस्प्ले के ऊपर आकर कैमरे के पास रहता है ना ये वाला। कभी लैपटॉप ओपन करेंगे तो ऐसा लगा होगा, दो, देखो ऐसे दो केबल निकलती है जो ऐसे जाकर आपके जो लैपटॉप का कैमरा होता है ये अंदर अंदर उधर जाकर रहता है, ताकि वो एंटीना, मतलब इसका जो ट्रांसीवर रिसीवर और ये सब है अच्छे से काम करे, ये सारी चीज़ें, है ना। तो सिंपल ये हमारा कार्ड है। अगर मान लिया कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उस पर वाईफाई का पुराना कार्ड पड़ा हुआ है, पुराना है, और उसमें वाईफाई 6 या 5 हम इस्तेमाल करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो देख लें अगर वो मदरबोर्ड सपोर्ट कर देता है तो एक बार ट्राई कर लें। तो हमारा जो पुराना कार्ड होगा जो 100 MBPS पर होगा वो GBPS में आ जाएगा, अच्छी स्पीड मिलेगी। तो ये 600-700 रुपये का कार्ड आता है, अमेज़ॉन पर आप देखना, यहाँ से ये है, कितने का है ये, 2600 रुपये। आजकल तो चिप्स वगैरह महंगी हो गई हैं तो फिर शायद इतना है, नहीं तो फिर नॉर्मली बहुत सस्ते आते हैं, 700-800। आजकल कोई भी चिप है वो काफ़ी कॉस्टली हो गई है ना, 4 टाइम्स 5 टाइम महंगी हो गई है। अभी मैंने एक वी सेंटर सर्वर के लिए एक स्टोरेज सर्वर बनाया है, 4 7 to 8 TB का, तो लगभग में 50 और 60 थाउजेंड का वो कार्ड, मतलब वो स्टोरेज पड़ा है, जो कि अगर हम ये जो प्राइस हाइक हुआ है अगर इस ड्यूरेशन से पहले लिए होते तो वो चीज़ 20,000 25,000 में हो जाता मैक्सिमम, है ना, 20,000 मिनिमम उसमें हो जाता हार्ड डिस्क। SSD की तो बात अलग है। आज अ, अगर हम एक हाई क्वालिटी SSD की बात करें तो काफ़ी हैवी क्वालिटी, बहुत बहुत कॉस्टली आज देखने को मिलता है, राइट। तो एज अ IT पर्सन हमें प्राइस भी डिवाइसेस का पता होना चाहिए, हमें हार्डवेयर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सेंस होना चाहिए कि कौन सा हार्डवेयर कहाँ पर कैसे क्या होता है ना। ये सब है, स्टोरेज वगैरह मैं पढ़ाऊँगा आपका, स्टोरेज जब टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा सर्वर में मॉड्यूल 5 या 6 में, तो आपको पूरा स्टोरेज, रैड वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन, मिररिंग, डुप्लेक्सिंग, डेटा डीडुप्लिकेशन, आइस का जी, NFS सब बताया जाता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारा ये होता है, कोई भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर जो मैक एड्रेस होता है उससे इस कार्ड को ट्रैक किया जा सकता है। ओके, कंटेन्स अ यूनिक मैक एड्रेस, ये क्या होता है, एक यूनिक मैक एड्रेस होता है और इसको ट्रैक किया जाता है। ट्रैक करने के लिए सिंपल, अगर आप अपना निक कार्ड का एड्रेस दो
तो एक वेबसाइट है, मैक वेंडर। कोई बोर तो नहीं हो रहा है आप में से? डायरेक्ट अभी मत ये सोचना कि मैं डायरेक्ट लैब स्टार्ट कर दूंगा। फर्स्ट मॉड्यूल आपको बहुत कुछ सीखना है, फिर लैब स्टार्ट होगी। यस, चलेगा सर, चलेगा। तो आई थिंक अगर ये सब नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, और बिल्कुल अभी मैं ABCD ही पढ़ा रहा हूँ सर्वर का। सो मैक थ्योरेटिकल भी वेंडर, जरूरी है सर। हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है ना आगे आ, आप लोग कितना ब्लैंक होने वाले हो, या जब एडवांस टॉपिक चलेगा तो क्या, मुझे बिल्कुल पता है। एक दो चार 10 बैच का आइडिया नहीं है, पूरा कई सालों का, और कई साल साल के जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनका मुझे आइडिया है कि कहाँ दिक्कतें होती हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें ऐड करके मुझे कोर्स बनाना पड़ता है कि पूरा एक कंप्लीट अपडेट हो। तो देखो यहाँ पर मैक वेंडर लुकअप पर मैं आया, और मैक वेंडर लुकअप के अंदर आप यहाँ पर आओगे। अब मान लिया कि आप एज ए सर्वर एडमिन हो, कोई मैक अटैक हुआ, आप एज अ लॉग सर्वर मैनेज कर रहे थे, इवेंट देख गए आप, तो आप कैसे पता करोगे कि ये मैक किसका है, कहाँ का है, क्या है? कुछ इन्वेस्टिगेशन में आप भी तो वो करो, या कंपनी को बोलोगे कि मैं ब्लैंक हूँ बिल्कुल, आई हैव नो आइडिया कि भाई इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। तो कम से कम आप तो कुछ बता सको, राइट? बहुत कुछ यहाँ से पता किया जा सकता है। और सिक्योरिटी आज अगर एक चीज़ और मैं आपको गाइड कर दूं, इन फ्यूचर आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो उसके साथ सिक्योरिटी लाइक सिलेबस जरूर ऐड करो, और सिक्योरिटी जरूर पढ़ो, है ना? सर्वर पढ़ रहे हो, सर्वर विद सिक्योरिटी पार्ट कवर करने की कोशिश करो मैक्सिमम, क्योंकि यही फ्यूचर है। विदाउट सिक्योरिटी आप नहीं संभाल पाओगे कोई कंपनी का रोल। कमिंग टाइम पर इतने साइबर अटैक और चीज़ें प्लान होंगी, है ना? क्योंकि कुछ ऑटोमेट होंगे, कुछ AI करेगा, कुछ ये है। अभी तो एक ह्यूमन करता था, आने वाले समय पर AI ऑटोमेट करेंगी सारी चीज़ें। तो बड़ा टफ होने वाला है मार्केट। जैसे यहाँ पर देखो, हमने एक मैक एड्रेस लिया, आप अपना मैक एड्रेस यहाँ पर अगर डालोगे तो आपको पूरा डिटेल बता देगा कि ये मैक एड्रेस किस कंपनी, मतलब ये कार्ड किस कंपनी ने बनाया। जब हम लोग कभी ऐसा बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन के समय हम बहुत सारे ऐसे केसेस पर काम किए हैं, देखे हैं। मुझे गवर्नमेंट का एक अप्रोच भी आया था, और मैंने उनको डेडिकेटेड ज्वाइन नहीं किया है, बट बहुत सारी चीज़ों में मैंने काम किया है, और बहुत सारे एज अ यूजर्स को हेल्प किया है और देखा है। तो क्या होता है एग्जैक्टली exactly, कि कोई ऐसा मान लिया कि अटैक हुआ एक डिवाइस पर, और उसमें IP या कुछ डिजिटल फुटप्रिंट मिला, और किसी तरीके से मुझे उसके अंदर IP और मैक की डिटेल मिली। तो उस मैक से बहुत ज़्यादा कोई वो ज़रूरत नहीं है, सिंपल अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको हेल्प देना है और ये सारी चीज़ें हैं, तो मैक से आप डिटेल निकालो वेंडर का। और वेंडर पता चला कि नोकिया कंपनी है, गवर्नमेंट कनेक्ट होती है सारी ऑर्गेनाइजेशन सारी चीज़ों से, अच्छा उसका सारा कुछ होता है, तो उसको बोलेंगे कि ये मैक एड्रेस किस कस्टमर के लिए वो था, रजिस्टर था, या किसको बेचा गया। तो कंपनी ने जब मैन्युफैक्चर किया तो वो किसी एक्स के लिए लॉट किया होगा, बेचा होगा, या उसने बोला अब उसको अप्रोच किया कि भाई ये सीरीज के मैक एड्रेसेस या डिवाइसेस कहाँ, आप देखो सीरियल नंबर और ये सब क्यों मैच होते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर बहुत सारे नहीं बना सकती कंपनी, और हर चीज़ है ना, हर एक का अपना अलग होता है, यूनिक नंबर होते हैं ये सब। तो इसने बोला कि मैंने एक्स डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा था, इसने बोला मैंने इसको बेचा था। अब ये बोला मैंने, मेरे पास ये सीरियल नंबर का जो डिवाइस है ये कस्टमर ने परचेज किया है। अब इस कस्टमर ने जब परचेज किया तो अपना आधार, पैन, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस कुछ तो दिया होगा, फिर वहाँ से लोग पहुँच जाते हैं। और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, डायरेक्टली उसका अप्रोच कर लो कि भाई कहाँ से ये बंदा इसका इस्तेमाल किया है ना? तो वेंडर लुकअप से मतलब मैक एड्रेस वगैरह जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और इन सारी चीज़ों पर होते हैं, उनसे बहुत कुछ पता किया जा सकता है। ये बहुत सारी साइट्स हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? ये ओपन साइट्स हैं। बहुत इंटेलिजेंस का काम करना है और आप साइबर इन्वेस्टिगेशन में चले गए, गवर्नमेंट के साथ बैठकर आप साइबर क्राइम ऑफिसर हो और ये सारी चीज़ें, तो ओसेंट इस्तेमाल करो। और बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो कि इस्तेमाल किया जाता है ना? एटॉप्सी वगैरह करी जाती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रॉपर तरीके से।
ओके। तो ठीक है, अनदर पार्ट है, बट सिक्योरिटी इंक्लूड करना करना चाहिए हर पर्टिकुलर उसके साथ। आप मैक्सिमम ट्राई करो कि उन सब चीज़ों को भी पॉइंट वाइज पॉइंट, जहाँ पॉइंट मिले कि हाँ इसका ये सिक्योरिटी पार्ट है, तो उसी समय पढ़ डालो थोड़ा बहुत। तो मैक वेंडर लुकअप या मैक हमारे एनआईसी कार्ड का ही पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंटरनेट एड्रेस का। ओके। सो गेटवे वगैरह तो हमारा कोई भी डिवाइस हो सकता है। मान लिया कि हमारा एक नेटवर्क में यहाँ से सिंपल ओपन करूँ, है कोई यहाँ पर मेरा नेटवर्क बना हुआ? यह ले लेते हैं, थोड़ा सा बस देखना है आपको समझने के लिए। गेटवे मतलब क्या होता है? गेटवे मीन्स एंट्री और एग्जिट पॉइंट, हमारे नेटवर्क का जो एंट्री या एग्जिट पॉइंट है। अगर हमारा ये नेटवर्क है तो हमारा ये राउटर और ये राउटर एज अ गेटवे है, ये गेटवे डिवाइस है। गेटवे मतलब सिंपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट, जहाँ से नेटवर्क में आने और जाने का रास्ता हो, वही हमारा क्या होता है? गेटवे होता है, राइट। सो रोल एंड फंक्शंस ऑफ गेटवे एक्ट एज अ ट्रांसलेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर। हमारा आईएसपी है, आईएसपी से आप भी कनेक्टेड हो, सब कनेक्टेड है। तो हमारा राउटर है जो गेटवे का काम कर रहा है, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर इस समय जिस डिवाइस से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा काम है कि अपने गेटवे को डेटा दे देना। मेरा काम आपको डेटा देना नहीं है, मैं डायरेक्ट आपसे नहीं बात कर रहा हूँ। मेरा काम है हमारे राउटर को डेटा देना। मान लिया कि मैं इस तरीके से कनेक्ट हूँ, मैं इस यहाँ पर अपना कनेक्शन मेरा स्टेब्लिश है, तो मैंने यहाँ से इस पीसी ने मान लिया कि अपने राउटर को डेटा दे दिया। गेटवे को हमेशा डेटा सेंड करेगा, और गेटवे का काम होगा कि भाई आगे का रूट कैसे डिसाइड करना है, वो अपने आईएसपी को देगा। आईएसपी डिसाइड करेगा कि ये यूजर कहाँ कहाँ है। इंटरनेट का कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो गेटवे सिंपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। और गेटवे हमारा अगर स्विच लेवल का गेटवे है, लैन लेवल की इन्वायरमेंट है, तो लेयर 2 में भी गेटवे आ जाएगा। नेटवर्क है तो लेयर 3 में आ जाएगा, है ना। तो मल्टी लेयर ओएसआई, मल्टी ओएसआई लेयर पर ये वर्क करता है। ओके। हमारी कंपनी में जैसे आपने देखा होगा कि आपके कंपनी में या आपके घर पे एक इंटरनेट कनेक्शन आया आईएसपी से, ठीक है, एक आईएसपी। अब मान लिया कि इंडिया में हो तो आपके पास आईएसपी जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, वीआई है, बहुत सारे हैं, और मल्टीपल लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हर एक शहर में मिलेंगे आपको। तो यहाँ से आपने मान लिया कि एक्स से आपने कनेक्शन लिया और इसने एक राउटर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, ये राउटर। अब राउटर से आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना यूज़ कर रहे हो और ये सारी चीज़ें। अब आप अपनी डिवाइस पर जो आईपी देते हो उसमें आप क्या देते हो? एक गेटवे जैसा एंट्री करते हो, गेटवे डिवाइस देते हो, गेटवे की एंट्री करते हो। तो गेटवे की एंट्री का मतलब क्या होता है? गेटवे आईपी, यानी कि आप अपने राउटर की आईपी, अब मान लिया मेरे राउटर की आईपी 192.168.1.1 है, तो ये मैं सारे कंप्यूटर को असाइन करूंगा, ताकि हमारे कंप्यूटर को पता हो कि हमारा गेटवे किधर है, कहाँ है। जैसे घर, एक बड़ा सा महल है, बिल्डिंग है, घर है। अब उस घर का एक ही गेट है बाहर जाने का, राइट। अब घर के अंदर 1,000 लोग हैं, या बहुत बड़ा सा एक मतलब कुछ है, हॉल है या कुछ भी ऐसा, 1,000 या 100 कैंडिडेट उधर है अंदर। अब इनको आपने बताया ही नहीं कि गेट किधर है, तो वो जाएंगे कैसे बाहर? और बाहर के लोगों को नहीं पता कि इस हॉल में जाने का रास्ता का एंट्री पॉइंट क्या है, इनको नहीं पता एग्जिट पॉइंट क्या है। तो वो दूसरे एरिया से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारा गेटवे जस्ट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर, और इट इज़ एन एग्जिट और एंट्री पॉइंट। ओके, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लोड बैलेंसर इस्तेमाल किया जाता है। लोड बैलेंसर एक्चुअली हम स्विच में भी यूज कर सकते हैं, राउटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या लोड बैलेंसर के लिए डेडिकेटेड सर टेक्नोलॉजी एक क्वेश्चन था। इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाँ जी। सर गेटवे आप बताया, फिर डीएनएस भी रहता है, अल्टर डीएनएस, तो उसका? हम्म। आईपी एड्रेस में आईपी यस होता यस, है। नेटवर्क प्रॉपर्टी में अपन यूज करते हैं ना। हाँ, आईपी होता है, सबनेट मास्क होता है, और हाँ, गेटवे होता है। ये तीन गेटवे। प्रॉपर्टी हमारे नेटवर्क की होती है। फिर यहाँ पर आता है हमारा इंटरनेट पर डेटा भेजना है या होस्ट रिजॉल्व करने हैं, तो वहाँ पर डीएनएस एंट्री आती है, डीएनएस 1, डीएनएस 2। ठीक है। डीएनएस 1 प्राइमरी डीएनएस होता है और सेकंड हमारा अल्टरनेट डीएनएस होता है। तो प्राइमरी डीएनएस हम अपने आईएसपी की आईपी दे देंगे, और अल्टरनेट डीएनएस में हम अपना कुछ भी कोई और आईएसपी दे सकते हैं जो इंटरनेट पर प्रॉपर अवेलेबल हो, जैसे 8.8.8.8 गूगल का कर देते हैं। तो हमारा राउटर और ये डीएनएस मिलकर क्या करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रॉपर यूज़ करते हैं। अगर आप डीएनएस नहीं देंगे तो इंटरनेट पर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे आप। राउटर तक तो ठीक है, बट बाकी इंटरनेट पर जाने के लिए डीएनएस चाहिए, राइट। आप अगर डीएनएस हटा दो अपने कंप्यूटर सिस्टम से तो आप देखोगे इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा और बताएगा डीएनएस अनरिचेबल, होस्ट अनरिचेबल, है ना। क्योंकि डीएनएस एक ऐसी सर्विस है जो होस्ट को क्या करता है, रिजॉल्व करता है, होस्ट को कनेक्ट करता है, होस्ट को रिक्वेस्ट करता है, ओके, होस्ट को कम्युनिकेट करता है। डीएनएस पढ़ाया जाएगा, आप लोगों का पूरा चैप्टर है। तो सिंपल यही है हमारा लोड बैलेंसर। कोई डिवाइस और ऐसा नहीं है, लोड बैलेंसर जस्ट टू बैलेंस द लोड। ओके। मान लिया कि आ, अब एक छोटा सा अपडेट यहाँ पर आपको। सर आज का नोट्स शेयर कर दीजिए, कल का नोट्स भी नहीं आया था। आपका ध्यान नोट्स पर है या इस टॉपिक पर? नोट्स अभी मैं शेयर करूँगा, लास्ट में वही मैं करता हूँ। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा। हम लोग हम्म। एक्सट्रीम स्विचेस यूज करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली वो ऑलरेडी कौन सा? इंस्टॉल्ड है, एक्सट्रीम स्विचेस। हम्म। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, किसमें किसमें? स्विचेस वर्सेस एक्सट्रीम स्विचेस? एक्सट्रीम स्विचेस? यस सर। आप लिखो मैसेज में क्या बोल रहे हो आप। सर सर एक्सट्रीम ही होता है वो, सिस्को के ही आते हैं आई थिंक। अच्छा, स्विच के टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको याद करना और ये सब चीज़ें मुश्किल है। डिफरेंट ओके। डिफरेंट टाइप्स के स्विचेज हमें मिलते हैं। स्विच स्विच का ही काम करेगा, बहुत सारे स्विचेज होते हैं जो लेयर 3 का काम करते हैं ना। तो अगर कोई स्पेसिफिक टाइप या कैटेगरी के स्विच की बात हो रही है तो उसमें हो सकता हो कि एक्स टाइप, वाई टाइप, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की एडिशनल सर्विसेज इंक्लूड करके करी गई हो। ओके। तो डिफरेंस हम अ, तब डिफाइन मैं कर तो बिल्कुल सकते न्यू हैं। हूँ। हाँ, मैं तो आज डिफरेंस तक हम जा रहा हूँ तब इनटू डिफाइन कर सर्वर सकते एडमिन, हैं, तो या बिल्कुल, कि हमारा पर्टिकुलर डिवाइस मॉडल नंबर कौन सा है। उस मॉडल के यस। अकॉर्डिंग फिर हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि मान लिया अगर आप बोलो कि लेयर 3 स्विचेस क्या है, तो लेयर 3 या लेयर 2 दो ही स्विचेज होता है। अब इसमें अगर 1000 मॉडल हैं तो उन मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे या कोई स्पेसिफिक नेम के थ्रू, तो हमें जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम डेटा सेंटर के लिए जा रहे हैं, एज के लिए जा रहे हैं, किस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग डिवाइस होगा, अलग अलग कैटेगरीज के स्विचेज होंगे, उनके अलग अलग फीचर होंगे, है ना। किसी में इतनी स्पीड होगी, किसी में इतने पोर्ट होंगे, किसी में इतने एसएफपी का सपोर्ट होगा, किसी में नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लोड बैलेंसर की बात कर रहे हैं। लोड बैलेंसर कोई ऐसा डिवाइस नहीं है कि हम इसमें राउटर इस्तेमाल करें, स्विच इस्तेमाल करें या क्या भी। बैलेंसर का मतलब होता है कि टू बैलेंस द ट्रैफिक और डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल सर्वर। भाई कि अगर हमारे पास ये एक सर्वर है, ओके, और एक और सर्वर अगर हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो इन दोनों सर्वर मतलब इस पर अब यहाँ पर 1000 यूजर की रिक्वेस्ट है, तो जरूर नहीं कि यही बस सर्वर इस्तेमाल हो, इसको एक्सेस करें। कुछ ट्रैफिक इधर चली जाए, कुछ इधर चली जाए, कुछ इधर कुछ इधर। तो लोड बैलेंसर का काम होता है और ऐसी सर्विसेज कॉन्फ़िगर की जाती हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक लोड बैलेंसर इस्तेमाल किया गया इन टेक्नोलॉजी, इसके बीच में स्विच के बीच में लोड को बैलेंस किया गया है कि एक इंटरफेस पर डेटा नहीं जाएगा। अगर PC 0 बहुत ज़्यादा डेटा सेंड कर रहा है इस सर्वर पर, तो ये ट्रैफिक ये
तीनों लिंक मिलकर क्या कर रहे हैं, लोड को बैलेंस कर रहे हैं एट अ टाइम। क्लियर है, देखो ये भी तीनों ग्रीन है। तो डेटा हमारा तीनों मिलकर मैनेज कर रहे हैं। अगर 100 डेटा है तो मान लिया कि 50 इसने मैनेज किया, 20 इसने किया, 20 इसने किया, ऐसे मैनेज हो जाता है, राइट। तो लोड बैलेंसर बेसिकली मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल लिंक का इस्तेमाल करके लोड या ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लोड को बैलेंस कर देना है। मान लिया कि 100 kg का एक सामान है और उसको एक पर्सन उठा रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा लोड है। अब 2 पर्सन है तो 50-50 kg डिवाइड करके दोनों को दे दिया, लोड कम हो गया। किसी को 60 कर दिया तो किसी को 40 कर दिया। तो ये सब हम डिफाइन कर सकते हैं और ये हम करेंगे भी। ये हम लोग जब 17 मॉड्यूल जाएंगे आगे तो हम लोग लोड बैलेंसिंग सर्वर पर करेंगे, मल्टीपल एनआईसी के साथ कैसे लोड बैलेंस, या डीएससीपी में कैसे लोड बैलेंस, और बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। ओके। प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी का नाम आप लोगों ने सुना है? व्हाट इज प्रॉक्सी बेसिकली? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बताइए। प्रॉक्सी वर्ड, अच्छा प्रॉक्सी और कहाँ सुना आप लोगों ने? एग्जाम वगैरह देने में प्रॉक्सी वर्ड का नाम सुना है? प्रॉक्सी लगाया गया है इसका, इसीलिए रैंक 1 लाया है, ऐसा सुना है? मैच वगैरह फिक्सिंग होती है, प्रॉक्सी है। कहीं तो सुना होगा, किसी ऐसे पॉइंट पर नहीं सुना कहीं आप लोगों ने? सर डेली लाइफ में तो होता ही है प्रॉक्सी, आई मीन सिंपली रिप्लेसिंग विद समथिंग एल्स। हाँ रिप्लेसिंग कितना, टाइम बिंग के लिए रिप्लेस करना। बिल्कुल। तो इन टेक्निकल वर्ड प्रॉक्सी का मतलब हम बोल सकते हैं कि इंटरमीडियरी और मिडिल मैन, सिंपल। ठीक है। जैसे अगर हमारा ये, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर चलता हूँ सिक्योरिटी का। मान लिया कि ये हमारा डार्क वेब है, डार्क वेब है। डार्क वेब क्या होता है? इंटरनेट का ऐसा हिस्सा जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब ना के बराबर, या जो इस्तेमाल करता है बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक्सपर्ट होता है इंटरनेट का, बहुत एडवांस नॉलेज होती है, तब वो डार्क वेब में इंटर करता है। डार्क वेब मतलब समझ लो कि आ, ऐसे जोन में, यानी कि पबजी वाला जो गेम होता है ना, उसमें ऐसे जोन में आप चले जाओ जहाँ पर चारों तरफ गोलियां चल रही हो। आप उसमें आप चले गए तो आप उसी का हिस्सा हो। आप चलाओ या ना चलाओ, पकड़े जाओगे तो क्राइम के ही अंदर आओगे। तो यहाँ पर डार्क वेब एक ऐसा, मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर समझ लो कि बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटी, या लाइक ब्लैक मार्केटिंग, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अनबिलीवेबल हैं। जो एमस्टीन फाइल वाला आप पूरा रिकॉर्ड देख रहे हो आने वाले समय पर, यहाँ उससे बहुत बहुत आगे की चीज़ें यहाँ के इसके अंदर मिलेंगी, वो तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो डार्क वेब एक इंटरनेट का, हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का 2-3% इस्तेमाल कर लेते हैं, 4%, 5% चले जाते हैं। बट बाकी जो 90-95% इंटरनेट है वो तो हमसे दूर है ना, हमसे, हमारी नज़र में नहीं है। तो वो इंटरनेट का हिस्सा एक्सेस करने के लिए, या इसको भी हटा दो, मान लिया कोई सर्वर है किसी लोकेशन पर। अब इसको थोड़ा सा मैं लीगल टर्म में लेकर आता हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बहुत लंबा कम्युनिकेशन जाएगा। हमारे पास एक सर्वर है जो इंटरनेट के किसी लोकेशन पर अवेलेबल है। अब इस तक मुझे जाना है, ओके। और मैं यहाँ ये मान लिया कि ये यूएसए में है और इंटरनेट से ये कनेक्टेड है। इंटरनेट बहुत बड़ा है, यहाँ पर इतने सारे इंटरनेट
रिसोर्सेस है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंटरनेट बहुत बड़ा है। यहाँ पर हजारों लाखों इंटरनेट सर्विस या सर्विस प्रोवाइडर हैं। ऐसे कनेक्ट हैं हम यहाँ से अपने इंडिया में। यहाँ मैं लैपटॉप से एक्सेस किया, मुझे यहाँ सर्वर पे जाना है। बट मैं नहीं चाहता, साइबर क्रिमिनल डार्क वेब में एंटर करता है तो प्रॉक्सी लगा सकता है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि इसका खुद का डिजिटल फुटप्रिंट यहाँ पर ना बने। प्रॉक्सी का मतलब होता है किसी बिचौलिए को इस्तेमाल कर लेना, है ना। जैसे मान लिया मेरा एग्ज़ाम है सीसीएनए का, और मैंने सीसीएनए, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने पढ़ा ही नहीं, सीसीएनए का फुल फॉर्म नहीं मुझे पता, है ना। बट मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एग्ज़ाम बुक करूँगा, 25,000 रुपये दूंगा, 25,000 की जगह 30,000 रुपये दे दिया सेंटर को, या जहाँ भी ऐसा सारा कुछ है, बहुत सारी जगहों पर होते हैं। तो क्या होगा कि मेरा एग्ज़ाम कोई और दे देगा, प्रॉक्सी लग जाएगा। प्रॉक्सी, मुझे बस बैठ के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना होगा कि भाई हाँ मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। बट हमारे सिस्टम की प्रॉक्सी लगेगी, प्रॉक्सी में हमारा सिस्टम का एक क्लोन चलेगा, और वहाँ पर बैठकर काफ़ी एक्सपर्ट लोग उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसा हमारा प्रॉक्सी होता है। प्रॉक्सी मतलब है कि भाई मुझे यहाँ से अपने लैपटॉप से, मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.100.0, सॉरी 100.10, और मेरा मैक एड्रेस मान लिया एक्स है, वाई है, कुछ भी है, मेरा नेटवर्क एड्रेस कुछ और है। तो मैं जब डेटा सेंड करूँगा तो इंटरनेट पर जाएगा, तो मेरा एड्रेस होगा भाई। मान लिया मेरे राउटर से नेट जैसी सर्विस भी अप्लाई हो गई, पैड जैसी सर्विस भी अप्लाई हो गई, तो मेरा ये प्राइवेट आईपी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम विदाउट इंटरनेट की बात करें तो प्राइवेट आईपी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइवेट आईपी किस में कन्वर्ट होगा, पब्लिक में, है ना। और पब्लिक आईपी कौन देगा, आईएसपी देगा। अब मान लिया मेरा आईपी प्राइवेट ये है और पब्लिक आईपी मेरा हो गया 10.0.0.20, तो 10.0.0.20 जाएगा इस सर्वर पर, हिट करेगा, और ये रिप्लाई करेगा, बोलेगा किसको देना है रिप्लाई। मान लिया यहाँ से मैंने कोई डेटा एक्सेस किया, वही डार्क वेब का अगर एग्जांपल हो, तो मैंने कुछ यहाँ से सर्विस एक्सेस किया, तो मेरा रिकॉर्ड जाएगा 10.0.0.10 बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मेरा है नहीं। बट अगर ये रिप्लाई देगा तो 10.0.0.10 से पता चल जाएगा कि 10.0.0.10 यही है। तो साइबर क्रिमिनल्स, हैकर, अटैकर या प्रॉक्सी लगाकर हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी को इन्हांस करते हैं। अगर हम प्रॉक्सी लगा देते हैं तो मान लिया कि हम एक प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल कर लिए, और इंटरनेट का एक्स एक प्रॉक्सी है, तो मेरा रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, और ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन को हटा देगा। ठीक है, इंटरनेट पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट कर देगा, और एक रेंडम फेक एड्रेस इसको दे देगा, और ये रिप्लाई देगा तो इसको देगा, और अगर इसके बारे में कोई छानबीन करना चाहेगा तो इसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ये तो सिंगल प्रॉक्सी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉक्सी का मतलब होता है मल्टी चेन या चेन बेस्ड प्रॉक्सी। प्रॉक्सी चेन भी इस्तेमाल किया जाता है प्रॉक्सी चेन सिक्योरिटी के लिए। मतलब एक प्रॉक्सी सर्वर है, उसका एक प्रॉक्सी है, उसके अदर बहुत सारे प्रॉक्सी हैं, तो ऐसा फेक एड्रेस इस्तेमाल हो जाता है, मतलब ऐसे एड्रेसेस हो जाते हैं कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता रियल टाइम में, है ना। तो जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, या कोई बहुत ऐसी कंपनी का जो सर्वर है या कुछ ऐसा है जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सी जस्ट मैन इन द मिडिल अटैक, या सर्वर और क्लाइंट के, मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क और इंटरनल नेटवर्क के बीच का वो सर्वर है जो कि कम्युनिकेट करवा रहा है। यहाँ से रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है और रिक्वेस्ट को चेंज करके यहाँ भेज रहा है। इसको लग रहा है कि रिक्वेस्ट यही भेज रहा है, बट ये नहीं है। ये बस सर्विस दे रहा है, रिक्वेस्ट भेजने वाला ये है। ओके, तो ये हमारा प्रॉक्सी और ये सारी चीज़ों का अपडेट होता है। ओके, एक शॉर्ट वर्ड, मतलब 10-15 मिनट का टॉपिक है, बहुत छोटा सा। अ, आपके लिए ज़रूरी भी है, नहीं भी है।
जस्ट कंप्यूटर और नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बस ऐसे गो थ्रू कर लो आप। अभी इतना समय है कि हम इसको समझ सकते हैं, 10-15 मिनट का टॉपिक है। नेटवर्क टोपोलॉजी या टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क। यस। तो सिंपल टोपोलॉजी मतलब आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क आर अरेंजमेंट of networking devices in proper way। जैसे कोई कंपनी में स्विच है, आपकी हमारी कंपनी में क्या होते हैं, मल्टीपल स्विच है, जो 10 स्विच रखा है, 4 राउटर हैं, 2 फायरवॉल है, 2000 कंप्यूटर्स हैं। इन सब का एक प्रॉपर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइज करना कि कौन सी डिवाइस कहाँ रहेगा, कौन सा डिवाइस किसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये हम लोग किसके अंदर मैनेज करते हैं? टोपोलॉजी के अंदर। ओके। तो टोपोलॉजी का मतलब होता है प्रॉपर और फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके। कि भाई हमारा स्विच है, स्विच हमारा कनेक्ट होगा राउटर से, राउटर कनेक्ट होगा आईएसपी से, है ना। अगर हम फायरवॉल इम्प्लीमेंट करना चाहें तो फायरवॉल लगा सकते हैं, और हम स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच से फिर हम अपने सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच से दूसरा स्विच कनेक्ट करना है। तो एग्जैक्टली व्हाट इज द आर्किटेक्चर, ओके, ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी का पार्ट होता है। ओके। तो नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत सारे टाइप्स का आपने देखा होगा। सबसे पहले हमारा आ जाता है बस टोपोलॉजी, फिर आपने देखा होगा स्टार टोपोलॉजी, फिर आपने सुना होगा ट्री टोपोलॉजी, ऐसे करके आपने सुना होगा रिंग, फिर आपने सुना होगा मेस, फिर आपने सुना होगा हाइब्रिड जैसी टोपोलॉजी। नॉर्मली बेसिक टोपोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है कि इन बस टोपोलॉजी ओनली सिंगल बैकबोन केबल कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस, राइट। ये हमारा क्या होता है, सिंगल केबल होता है। बस टोपोलॉजी हमारा पुराना है, नॉट इन यूज है, बट सिंगल केबल होता है, और इस सिंगल केबल पर सारी डिवाइसेस कनेक्ट होते थे ये। और इस केबल को बोला जाता था बैकबोन केबल, राइट। इसके एक एंड पर हमारा क्या होता था, टर्मिनेटर लगा होता था। टर्मिनेटर मतलब एक कनेक्टर जो सिग्नल को ब्लॉक करता था, मतलब केबल को ब्लॉक कर देता था इधर की, केबल ओपन ना रहे, डेटा लॉस ना हो। बाकी यहाँ पर बीएनसी टी कनेक्टर इस्तेमाल होते थे, कोएक्सियल केबल वगैरह मान लो आप, सब सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ कोएक्स केबल ही इस्तेमाल होते थे ऐसे कनेक्टिविटी के लिए। तो इसमें क्या होता था, जैसे कि बहुत, अगर हम 2010, 9, 10, 11 में देखें या 12 में, जो मुझे याद है कि हम उस समय जब किसी कॉलोनी में टीवी वाले आते, टीवी सेटअप जो प्रोवाइड करते थे ना, सेटअप बॉक्स, अब तो आ गया है सब स्मार्ट टीवी और ये सब हो गया। पहले क्या होता था, एक केबल होती थी जहाँ पर एक बीएनसी टी टाइप के कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता था। कनेक्टर होता था, उसमें ऐसे सारे पॉइंट निकले होते थे, है ना। और यहीं से सबके घरों में क्या होता था, एक एक उससे कनेक्शन दे दिया जाता था। फिर केबल आगे गई, यहाँ लगाया गया, यहाँ 4 घरों में कनेक्शन गया, फिर आगे ऐसे सब चीज़ों से। अगर यहाँ केबल डैमेज तो पूरा नेटवर्क डैमेज। तो बैकबोन केबल मतलब बस टोपोलॉजी में ऐसे ही प्रॉब्लम थी। और बस टोपोलॉजी क्या था कि अगर डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस एट अ टाइम डेटा सेंड कर दिए तो डेटा हमारा क्या होता था, लॉस हो जाता था, डेटा कोलाइड हो जाता था। ओके, हाफ डुप्लेक्स मॉडल था ये। बट ये ओल्ड और बहुत लाइक अनसक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है। बट अगर हम आज की बात करें तो हर एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में हमें स्टार टोपोलॉजी देखने को मिलता है। स्टार टोपोलॉजी मतलब अभी जो मैंने आपको दिखाया, या डेली बेसिस पर आप इस टोपोलॉजी का अपनी कंपनी में यूज देखने को पाएंगे। जैसे देखो, एक स्विच से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, कोई ऐसी टोपोलॉजी बनेगी ही नहीं जो इस तरीके से ना हो कि एक स्विच लगा वहां से 100, 200, 25, 50 डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस होता है, जैसे स्विच, हब, राउटर, और इससे सारी डिवाइसेस क्या हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं।
तो दिस इज सेंट्रल डिवाइस। ओके, तो ये स्विच हो गया। हब तो नहीं इस्तेमाल करेंगे हम लोग, स्विच इस्तेमाल करेंगे। और सारे कंप्यूटर इससे कनेक्टेड हैं। इसमें अगर मान लिया कि एक नया कंप्यूटर ऐड करना है बस में, तो क्या होता था, पूरा प्रॉब्लम होता था। बट इसमें नया कंप्यूटर ऐड करना है, पोर्ट खाली है, तो लैन केबल लिया, कनेक्ट कर दिया, किसी दूसरे कंप्यूटर पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार टोपोलॉजी एक बेस्ट मॉडल है, बेस्ट टोपोलॉजी है नेटवर्क इन्वायरमेंट में। और हर पर्टिकुलर कंपनी का जो लैन इन्वायरमेंट होता है, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके होता है। राइट। इसमें ट्रबल शूट करना काफ़ी आसान है। मान लिया एक्स पीसी पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि इस केबल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसमें इस पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हम केबल अगर डैमेज है तो सारा केबल, सारा नेटवर्क, इंटरनेट बंद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। बट इसमें एक अगर केबल डैमेज है तो एक कनेक्शन ब्लॉक होगा, एक कनेक्शन हटेगा, बाकी सारे चल रहे होंगे। बट अगर सेंट्रल डिवाइस डैमेज हुआ तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ओके। इसको एक्सटेंड करना भी काफ़ी आसान है। नए स्विच को लगा दिया, पोर्ट खाली है, और डिवाइसेस ऐड कर दिया। तो दिस इज द स्टार टोपोलॉजी। ओके, इजी टू मैनेज है, इजी टू ट्रबल शूट है, और हर कंपनी की नीड है। ट्री टोपोलॉजी हमारा क्या होता है, बस और स्टार को मिला करो। तो मान लिया हमारा 3 फ्लोर का ऑफिस है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर 100 डिवाइसेस, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100। तो हम क्या करते हैं कि मान लिया यहाँ पर एक स्विच ले लिया, और यहाँ पर एक ले लिया, और यहाँ पर ऐसे करके हर फ्लोर पर ऐसे। और मैंने एक डेडिकेटेड कनेक्शन इसको दे दिया, इसको इससे दे दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हो गया बस का। यानी कि ट्री टोपोलॉजी हमारा क्या होता है, बस प्लस स्टार का कॉम्बो बोल सकते हैं। तो ये हमारा डेडिकेटेड बैकबोन केबल हो गया, सारे फ्लोर को कनेक्ट करेगा। और यहाँ से हम यहाँ पर एक स्विच लगा दिए, यहाँ पर एक स्विच, और यहाँ पर एक स्विच, और सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए। तो ये हमारा स्टार हो गया। ओके, जब फ्लोर बाई फ्लोर कनेक्शन होता है और ये सारी चीज़ें, तो फ्लोर टू फ्लोर बैकबोन केबल हो गया बस की तरह। क्योंकि अगर यहाँ से कनेक्शन डैमेज हुआ तो पूरा फ्लोर का कनेक्शन गड़बड़ हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो कि बस टोपोलॉजी का फीचर है। फीचर नहीं बोलेंगे, एक बड़ा ड्रॉबैक है। बट यहीं पर अगर हम बात करें, तो अगर हमारा सेंट्रल डिवाइस है तो इजी टू मैनेज, वही सारा स्टार टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ऐसे रिंग टोपोलॉजी में सारी डिवाइसेस एक दूसरे से क्लोज लूप में कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने एक स्विच यहाँ पर ले लिया, एक स्विच यहाँ पर ले लिया, एक स्विच ऐसे ले लिया, और इन सबको मैंने कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से मैंने दो कंप्यूटर इस इधर कनेक्ट कर दिया, कुछ कंप्यूटर इधर कनेक्ट कर दिया, और कुछ कंप्यूटर इधर कनेक्ट कर दिया। तो सब क्लोज लूप से हैं। ओके। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए इस स्विच के साथ, तो अगर ये वाला लिंक डाउन होगा तो डेटा इधर से चला जाएगा। यहाँ अगर जाना है यहाँ से यहाँ, अगर ये लिंक डाउन है तो इधर से जाएगा। तो क्लोज लूप मतलब सभी एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ऐसे। दिस इज द क्लोज लूप कनेक्शन, रिंग टोपोलॉजी के अंदर होता है। ओके। तो इसमें हम चाहें तो एक सिंगल रिंग, एक सिंगल केबल इस्तेमाल करें, और अगर हम चाहें तो ड्यूअल केबल इस्तेमाल करें। ओके। ड्यूअल केबल का मतलब, मान लिया सिंपल, अगर मैं आपको एक अपडेट दिखाऊं। मैंने स्विच ही लेकर हम काम कर लेते हैं, तो बस दो ही ले लेते हैं। दो के बीच में मैंने एक सिंगल कनेक्शन दे दिया। और मान लिया कि मैंने यहाँ से एक पीसी, और एक और पीसी, और एक और पीसी, एक और पीसी। डायग्राम में आप लोगों ने बहुत सारा डायग्राम देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि डायरेक्ट पीसी टू पीसी ऐसे रिंग टाइप में बने होते हैं। बट ये भी रिंग ही है। अब आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, आगे धीरे धीरे समझ जाएंगे। कि यहाँ पर देखो एक क्लोज लूप है, मैं यहाँ एक स्विच लगा दूँ और सबको कनेक्ट कर दूँ, एक ऊपर लगा दूँ, तो एक रिंग जैसा फॉर्मेट बन जाएगा। बट ये है। और मान लिया कि मुझे यहाँ से कनेक्टिविटी, या यहाँ से मुझे
डेटा शेयर करना है। तो अब मैं मेरे पास ये एक डिवाइस है, ये ये डेटा सेंड कर रहा है इसको। तो इसने सेंड किया यहाँ और यहाँ पर है। तो इसके पास क्या है, एक सिंगल कनेक्शन। अब मैं यहाँ पर एक और स्विच लगा के एक और कनेक्शन दे दूँ तो इसके पास एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक यहाँ पर दे दूँ, ऐसे ऐसे मल्टीपल, एक पूरा लूप बन जाएगा। और अगर मैं यहीं पर इन सबको मल्टीपल कनेक्शन दे दूं, मैं यहाँ से एक और कनेक्शन दे दूं स्विच पे, हम बिल्कुल दे सकते हैं, क्या दिक्कत है। पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्शन दे दिया, दो कनेक्शन। अब एक फेल होगा, दूसरा एक्टिव हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम यही इस्तेमाल करते हैं लाइक अपने रिंग टोपोलॉजी में, और यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ले लिया, एक यहाँ पर कनेक्शन ऐड कर दिया, तो किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये इधर का हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। और अब जैसा ये मैंने मॉडल बना दिया, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया ऐसे। सो ये हमारा हो गया एक तरीके का मेश टोपोलॉजी, ठीक है। मेश टोपोलॉजी का एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, दिस इज मेश टोपोलॉजी। अगर यहाँ सर्वर तक मान लिया कोई बाहर से यूज़र है ना, अगर कोई यूज़र है और मान लिया कि यहाँ पर कोई यूज़र है और वो डेटा शेयर करना चाहता है, इसको एक्सेस करना चाहता है, तो इंटरनेट पर अगर आता है तो इसके पास ही, अगर ये कनेक्शन डाउन हो गया तो एक और आईएसपी है, यहाँ से बात कर लेगा। अब यहाँ से ये वाला लिंक डाउन हो गया इस वाले राउटर का, तो ये यहाँ चला जाएगा। इसने, अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर दूँ, यहाँ से भी एक और लिंक अपडेट कर सकता हूँ। तो अगर ये लिंक डाउन है तो यहाँ पर, तो मेश टोपोलॉजी में मल्टीपल पाथ हो जाते हैं डेस्टिनेशन तक रीच होने के लिए। तो मतलब मैश टोपोलॉजी क्या होता है, एक तरीके का जाल बोल सकते हो। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी टोपोलॉजी डिजाइन करना कि किसी एक दो लिंक डाउन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, डेटा हमारा सेंड हो जाए, डेटा हमारा सेंड और रिसीव हो, ओके। या सर्वर हमारा अनरीचेबल ना हो। अगर मान लिया ये स्विच का ये लिंक डाउन हो गया, ये कोई एक स्विच ही गड़बड़ हो गया पूरा ये, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा सर्वर एक्सेस हो रहा है, राइट। हमारा सर्वर डेटा सेंटर, जब आप कभी आगे प्लान करेंगे डेटा सेंटर वगैरह, तो डेटा सेंटर ऐसा नहीं है ना एक लिंक पर चलाएंगे आप, मल्टीपल लिंक होगा ना, क्यों। यहाँ तक आने के भी मल्टीपल रास्ते होंगे, एक लिंक डाउन होगा, दूसरा वर्क करेगा, दूसरा डाउन होगा, ये। और सारी टोपोलॉजी का मिलकर जब कनेक्शन सेटअप होता है, या टोपोलॉजी, इंटरप्राइज टोपोलॉजी हो गया, कंपनी का टोपोलॉजी, मतलब ये पूरा टोपोलॉजी अगर हम देखें तो स्टार बस मेश रिंग सब यहाँ पर है ना। देखो यहाँ पर बैकबोन की तरह भी है, यहाँ पर देखो मेस की तरह भी है, क्लोज लूप भी है, और स्टार भी है ना। तो सारी टोपोलॉजी का मिक्सअप है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जब इंटरप्राइज नेटवर्क डिजाइन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो नेटवर्क होते हैं, उस वो उनकी टोपोलॉजी को हाइब्रिड टोपोलॉजी बोला जाता है, ओके। जस्ट एक अपडेट के लिए है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी नहीं जाएगा, टोपोलॉजी टोपोलॉजी पूछा जाएगा, व्हाट इज टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, तो सिंपल आप बता सकते हो, अरेंजमेंट और आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस और फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्टार बस में रिंग ट्री, यही सब होते हैं। तो सबसे पॉपुलर टोपोलॉजी स्टार है, और मेश टोपोलॉजी कंपनी के अंदर इस्तेमाल होते हैं मल्टीपल कनेक्टिविटी के लिए। स्टार सिंपल वर्क स्टेशन वगैरह जहाँ यूजर काम कर रहे हो, एक स्विच लगाकर सारे को कनेक्ट कर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो यही सब हमारा अपडेट होता है। ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, जो मैंने अभी जिस पर टोपोलॉजी बनाया था वो आपके लिए है ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं आपको उसकी।